Okay, then. Yeah. Welcome, everyone. Welcome to this very interesting session. We have very talented people who have worked a lot and who have worked hard in the field of gate and in the field of petroleum engineering. We have a lot of young minds as well in the audience. We have a lot of people who are enthusiastic to learn from this session. So, to introduce what we will be talking about and who we have with us today, I'll give you a bit of introduction and then I'll hand it over to Divyansh and the panel members and the rankers to have this, crazy and fun interaction about how to crack gate with AIR 1, 2, and 8. So basically, we have with us Mr. Srinath Jani, All India Rank 1 this year. Congratulations, Mr. Srinath. Welcome aboard and welcome to this session. Thank you for spending some time with us. We have Mr. Navdeep Dhaka, All India Rank 2, very close friend of ours. We have been seeing his preparation very closely. Congratulations, Mr. Navdeep, and thanks for spending time with us. We have a very familiar face, Mr. Divyansh Sethi, All India Rank 8 in GATE 2020, who is now working with ONGC as AE. He has been helping a lot of students. A lot of you might know him. So thanks, Divyansh, for spending time with us. We have a few special people as well with us. We have Mr. Harsh Arya, who is AIR 4. We are glad to have you in the session, Mr. Harsh. We have the founder of IPE, Mr. Hemant. Thanks, Mr. Hemant, for joining us. You have done a great job in, molding and mentoring the people of the petroleum community who are appearing for GATE. So, and as always, my dear friends, Mr. Anshul Jha and Jayesh Jar, we will be talking to the panel members and the rankers about all your queries, and then we will hand it over to the audience to bring their questions in. And let's see what we can learn from the great minds of Gate Petroleum. So, over to you, Divyansh. Let's get the session started. Yeah, thank you, Devyanshu. So, first of all, many congratulations to Mr. Srinath Jani, Navdeep Dhaka, and Mr. Harsharya. Thank you. We are Thank you. like very much looking forward to this fun interaction. This is not going to be a very like formal kind of discussion. This is just going to be a like chai pe charcha kind of discussion. Although we don't have a chai, like we can always have a water with us. That's not a problem. So, now first question, my actually what I have in mind is first of all, I want to know that in this session, whoever students have joined us, can I know their like if you can or type in the chat box like you are currently in the second, third, or fourth year, so that just we can get the idea where all the students are coming from, like from which year they are coming from. You can just type in the chat box, so we'll get an idea. Okay, Yash Gupta is second year. Konika Brilliant. Gaur is in second year. Rahul Jha fourth year. Lokendra second year. Pujita fourth year. Galsar MTech first year IIT ISM. Okay. Raghul is graduated. Saurabh Kumar second year. Okay. So we have a mix of BTech and MTech as well. And okay, so let's start the discussion. First of all, I would like to start from I remember my first interaction with Mr. Srinath Jani. I went to Jaipur to give an exam of Oil India, right, Srinath? We met Right. there. Yeah, we met there for the first time, and since then we have been in touch. Like we are in touch. What is going on? What kind of preparations are going on? And what in general in life, what is going on? So I'm in touch with Mr. Srinath Jani since then. And although I haven't met Mr. Navdeep Dhaka, but of course, in he has contributed a lot in Petroleum from Scratch as well. He's classmate. He's the classmate of all other three members apart from me of Petroleum from Scratch. So I've heard a lot of stories, funny and serious, and also I haven't met him, but I know him. You can say that. So obviously, Harsh, I have not known you, but I hope from this discussion we'll able to every one of us will able to know you, what is your history and where you come from, what kind of preparations you have done and all. So first of all, I would like to start from like Mr. Srinath and just a second. Mr. Navdeep, they have graduated from 2000. They are from the batch of 2017, right? They passed out their bachelor's degree in 2017. Navdeep is passed out from RTU Kota, and Srinath is passed out from PDPU. And on the other hand, Harsh Arya is a fresh graduate, relatively fresh graduate. He passed out from UPS in 2020. So I just want to know, like, what have been your mindsets? Like,
Srinath Jani and Navdeep are seniors than the Harsh Arya. What is there any difference in the mindset of Srinath and Navdeep and the Harsh? So if anyone can answer, like, why you started preparing for GATE in the first place, and what kept you going over all the years, especially who has passed out in 2017? So any one of you, Navdeep and Srinath, can start the discussion. कैन आई और नवदीप आपको बोलना है पहले. आप स्टार्ट करो आपसे. Let's start with Srinath. Yep. Okay. So first of all, thank you very much, Divyanshu, Divyans, and all other IP members. And also congratulations to you for your great channel Petroleum from Scratch. तो 2017 में पास होने के बाद उससे पहले मैं बीटेक कैरियर के दौरान मैं एक बार यूएसए विजिट किया था. तो वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर आप टैलेंटेड हो और इंडिया में रह के कुछ अपना सही से कर सकते हो तो जन्नत इधर भी है, वहाँ जन्नत पाने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो बात शुरू होती थी 2017 की गेट से. तो तब हमने हमारी प्रिपरेशन थोड़ी कम थी तो रैंक थोड़ा पीछे चला गया था, 60s के अंदर रैंक था. हमें पता नहीं था कि उस वक्त गेट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है. फिर 2018 में भी सेम रहा. लेकिन उसके बाद एक किक आती है अंदर से कि अब तो कुछ करना ही है. तो 2019 वाज द ईयर कि उसमें हमने सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन की गेट 2019 के लिए. और उस वक्त ऐसा था कि इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए. और तब दिव्यांश भी मेरे साथ था. दिव्यांश का ऑल इंडिया रैंक 25 था और मेरा उस वक्त 26 था. तो दिव्यांश को भी पता है कि वो फीलिंग कैसी थी. और उस टाइम जनरल के अंदर टोटल 30 सीट्स थी. तो हमें लगता था कि कंफर्म हो जाएगा इस बार. लेकिन उस वक्त कुछ हालात अलग हो गए. तकदीर में कुछ और लिखा था तो बात बन नहीं पाई. और मैं और दिव्यांश दोनों और एक हमारे साथ एक और हमारा दोस्त था उमर करके, हम तीनों लेस देन 1 मार्क से AEE की पोस्ट में रह गए. तो उसके बाद दिव्यांश IIT मद्रास चला गया और हम लोग जैसे बताया दिव्यांश ने कि हमारी फर्स्ट मीटिंग जयपुर के दौरान हुई थी. तब उस वक्त हम ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक एग्ज़ाम के लिए मिले थे वहाँ पर. तो लेकिन वो एग्ज़ाम भी इतना कुछ खास चला नहीं. तो फिर दिव्यांश वहाँ पे IIT मद्रास के अंदर एमटेक कर रहा था और मैं फिर से एक यहाँ पे एक लोकल जो प्राइवेट फर्म है वहाँ पे मैं कुछ सीखने के लिए जाता था, जो मेरा साइड जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे वो है. तो फिर मैंने उस वक्त भी गेट की प्रिपरेशन की और दिव्यांश का वहाँ से प्लेसमेंट हो गया. तो दिव्यांश ने भी गेट दी थी. उस वक्त उसका ऑल इंडिया रैंक 8 था, मेरा 22 था. तो उस वक्त भी उम्मीद थी कि चलो इस बार भी रैंक अच्छा है तो हो जाएगा. लेकिन तब देखते हैं तो मार्च 2020 में जो कोई भूल नहीं सकता और कोविड पेंडेमिक आया. और द मोमेंट जो लास्ट वीक हम सब पेट्रोलियम इंजीनियर्स के लिए एकदम क्रूशियल होता है कि लास्ट वीक ऑफ मार्च, कि जहाँ पे एक ही हमारा इकलौता PSU है ONGC, वो एडवर्टाइज करते हैं कि यस वी विल रिक्रूट यू फ्रॉम गेट 2020. तो वो हो नहीं पाया और उसको देखते देखते 2 साल बीत गए और आज भी अभी तक उसका रिजल्ट पेंडिंग है. तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये सही मौका है. तो मैं अभी वहाँ 2020 की गेट से मैंने वहाँ पे मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ, मैं PDPU से ही. और फाइनली उसके बाद ऐसा लगता था उस वक्त कि अभी 2020 का नहीं हुआ तो 2021 में ये लोग रिक्रूटमेंट करेंगे ही. तो हमने विदाउट प्रिपरेशन हम गेट के अंदर अपेयर हुए. लेकिन जो 2019 की प्रिपरेशन थी तो उसकी वजह से इतना फायदा हुआ कि विदाउट प्रिपरेशन भी वहाँ पे हमने 27 तक अचीव किया था. तो वो एक अंदर से होता है कि नहीं, हम विदाउट प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी रैंक ला पा रहे हैं तो अगर हम थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करें तो और अच्छे से रैंक आ सकती है. तो हमारे पास और करने के लिए कुछ था नहीं. वहाँ पे साइड में मास्टर्स चल रहा था तो हम यहाँ पे गेट की पढ़ाई भी कर रहे थे. और जैसे कि हम हर बार डिस्कस करते थे कि जिस दिन पेपर हार्ड आया, पेपर अच्छा हुआ, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर हुआ, उस टाइम वो पेपर हमारा होगा. तो इस टाइम हो गया 2022 में वो वाला पेपर आ गया जिसमें थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा थी और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे. तो अंदर से लगता था कि इस बार सिंगल डिजिट में तो आना चाहिए रैंक. और देखो भगवान ने क्या किया. और तकदीर बोलते हैं ना कभी तो साथ देती है. तो इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 दे दिया भगवान ने. जस्ट एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा. जो लोग श्रीनाथ जानी को नहीं जानते हैं, इनके गेट के रैंक मैं आपको बताना चाहूँगा शुरू से लेके एंड तक के अभी तक के. 2017 में इनका रैंक था 62, 18 में 60, 19 में 26 एंड 20 में 22, 2021 में 27 एंड 2022 के बाद ऑल इंडिया रैंक 1. सो इट्स नॉट लाइक आपने जैसे बोला है कि तकदीर का सबको पता है कि कितनी मेहनत लगती है. सिर्फ हाँ ऑब्वियसली तकदीर का कुछ ना कुछ हाथ रहता है.
बट तकदीर भी उनका साथ देती है जो लोग मेहनत करते हैं, ये हम डिनाई नहीं सही कर सही सकते, राइट? राइट। सो थैंक यू श्रीनाथ, आपने ये बताने के लिए। नवदीप, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? आप अपने बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे One प्लीज? one one point, Divyansh. I see in the chat someone from, I think he's from the south. So I'll translate what Srinath, or maybe Srinath, you can. ओके। Maybe I'll quickly translate what Srinath is trying to convey. So basically, Okay, we okay. were talking about basically his journey right from the time he first appeared for Gate, and how the pandemic struck us, and how it is like his rank has been really good. I mean, there were 30 seats in 2020. He had a rank of 26, I guess, and still luck was not in his favor, and he could not crack Gate. But he did not lose hope. He inferred some understanding from his trip to the US as well, and he has been learning continuously. And he was sure that the day paper will be tough and calculation based, he will definitely crack it. And 2022 was his mark, where the paper was really tricky, and you have the rankers in front of you. So let's listen to Mr. Navdeep. Then don't worry in the chat, everyone. Don't worry about the language. If you don't understand, please type in the chat. I'm here to translate, or anyone in the chat will translate. Don't worry about that. Yeah, Navdeep, आप बताइए आगे का क्या सीन है? आपकी स्टोरी सुनने को काफी लोग बहुत लोग सुनना तो चाहते क्या हैं। आपको सबको एक चीज मोटिवेट करूंगा कि नवदीप, where he comes from, Mr. Navdeep, the place he comes from, people are now starting to look forward to doing great things because of the seniors like Mr. Navdeep. And he must admit कि जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ पे लाइफ एंजॉय करने का बहुत अच्छा माहौल है, बट लोग वहाँ पे इतना सीरियसली पढ़ाई करना इन जैसे सीनियर्स को देख के अब चालू करने he has inspired many a lot of students. people. हम लोग के calls हुए भी recently. So let's hear it from Navdeep, fellow alumni of RTU and IIT ISM. हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, Navdeep. तो हाँ, हम तो बेसिकली हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। कि जब मैं बीटेक स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे को पेट्रोलियम का कुछ मालूम नहीं था। तब बेस्ट उस टाइम तक गेट भी नहीं था, और कि बेसिकली हमारा यह था कि डिग्री करनी है कॉलेज से और बाद में किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, क्यों गेट भी नहीं था। और उसी टाइम कि हम जब थर्ड ईयर में थे उस टाइम पे फर्स्ट बार गेट इंटरव्यू आया था। तो हमारे सीनियर ने गेट दिया तो उनकी अच्छी रैंक आई, तो हम उससे मोटिवेटेड हुए कि हम भी अब गेट क्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने 17 में गेट दिया। उस टाइम पे मेरा 200 समथिंग रैंक था, जिससे मेरे को एमटेक मिल रहा था। बट कि मेरे को ये था कि मेरे को पीएससी ज्वाइन करना है, ओएनजीसी ज्वाइन करना है। तो मैंने एमटेक ज्वाइन नहीं करके उस टाइम पे दोबारा से प्रिपरेशन करने का सोचा। तो मैंने दोबारा से सेल्फ प्रिपरेशन की वहाँ, और सेल्फ प्रिपरेशन करने के बाद में मेरे को फिर से गेट के एग्ज़ाम में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, जिससे मेरा फिर से रैंक 100 समथिंग आया। उसके बाद में मैंने उसी टाइम एमटेक ज्वाइन कर लिया। एमटेक बाद में उस टाइम मैंने सोचा कि एमटेक के साथ साथ प्रिपरेशन होती रहेगी और फिर अपन दोबारा से गेट निकाल सकते हैं। तो फिर मैंने 2020 में गेट दिया। जब 20 में गेट दिया तब मेरी अच्छे से प्रिपरेशन पहले से थी, तो मैंने 2-3 महीने अच्छे से और प्रिपरेशन करके मेरी 33 रैंक आई उस टाइम पे। हमने सबने साथ में ही प्रिपरेशन की, दिव्यांशु सर और जयस, अंशुल। और वहाँ आईएसएम का बेस्ट एक ही चीज़ सबसे अच्छा था कि वहाँ का माहौल, सबसे पढ़ने का माहौल सबसे अच्छा था। तो वहाँ पे उस टाइम पे मैंने गेट दिया और 33 रैंक आई। तो 33 रैंक थी, तो मैं उस टाइम पे, मेरा बेसिकली ओबीसी है, तो मैं श्योर था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि लगभग 70 रैंक तक उससे पहले सबका सिलेक्शन होता जा रहा था। तो मैंने बिल्कुल 33 रैंक के ऊपर बिल्कुल होप था कि बस हो जाएगा। उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन करना छोड़ दिया, बिल्कुल सब कुछ बंद था। तो बाद में जैसे ही पेंडेमिक आया, वो आपको पता है, उसके बाद में सीट्स निकली, तो सीट्स निकली, बाद में पता लग गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो सीट्स फिर भी मैंने बाद में फिर फ्रेंड से बात की, दिवांशु सर और जयस, और मेरे सीनियर है हेमंत बोस जो आईपी चला रहे हैं। तो उनसे बात की, उन्होंने मेरे को फिर से मोटिवेट किया कि तेरा इस बार 22 रैंक आया है, 33 रैंक है, तो तू इसको और इम्प्रूव कर सकता है।
तो फिर मैं उनके गाइडेंस के अंदर बिल्कुल प्रिपरेशन करता रहा। फिर मेरे पास केवल 2 महीने का टाइम था कि मेरे को क्रैक करना है इस बार। तो फिर मैंने लास्ट में अच्छे से प्रिपरेशन किया और इस बार अच्छा रैंक AIR2। थैंक यू गॉड फॉर दिस रैंक। एक पॉइंट बोलना चाहूंगा अबाउट मिस्टर ढाका एंड व्हाई दिस हिज स्टोरी इज रियली इंस्पिरेशनल फॉर समवन लाइक मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज अभी रिसेंटली मैं उनसे बात कर रहा था एक बार, आई वाज ऑन अ कॉल विद नवदीप, ही वाज टेलिंग मी उसके बैचलर्स के टाइम पे he could not even read a paragraph in an English book really well. And मेरे को ये समझ में आता है कि उनका गेट में रैंक जो थोड़ा सा भी कम आ रहा था ना, दैट वाज बिकॉज उनको पहले क्वेश्चन पढ़ना इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज एंड ही हैड टू ट्रांसलेट थिंग्स, ही हैड टू वर्क double hard, डबल और ट्रिपल हार्ड देन समवन हु इज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम. मैंने बहुत लोग, श्रीनाथ भाई आप भी जानेंगे कि पीडीपीयू में भी देयर आर अ लॉट ऑफ सच पीपल who are struggling with English as a medium and a lot of things come because of that. एक motivation down हो जाता है. But look at Navdeep, इनका story exactly वही था. Paragraph नहीं पढ़ पाते थे. Now he can talk in English. He's giving daily presentations also from where he is right now, and he's doing really great things. उसके साथ में he's also scored a great rank. So PDPU में बहुत लोग हैं and across the country, I mean, people have struggles with language as well. So there is a, don't worry, don't go down. Navdeep is a good story. Get in touch with Navdeep. Yeah. So Inspirational story, man. inspirational story. So yeah, Harsh, can you Let's give move a to Harsh. Yeah, yeah. Harsh, tell us. Harsh is actually relatively We are new very face, so excited to yeah, know about yeah. your story. Right. हाँ जी, हाँ जी। पहले तो गुड इवनिंग सभी को जो भी जुड़े हुए हैं। Good evening. एंड नवदीप भाई ने जैसे कहा उनकी स्टोरी और मेरी स्टोरी थोड़ी मैच करती है। जैसे उन्होंने बोला कि शुरू में उनको कुछ आइडिया नहीं था पेट्रोलियम के बारे में। तो सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये सोचता है कि मेरा 3rd ईयर भी हो गया, अब 3rd ईयर का भी 7th सेमेस्टर भी चला गया, अब कैसे होगी गेट की तैयारी, अब तक तो मुझे कुछ पेट्रोलियम की नॉलेज भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर इफ यू वांट टू प्रिपेयर, आप करना चाहते हो, तो गेट के लिए मेरे हिसाब से 6 मंथ्स अगर आप अच्छे से करोगे तो वो सफिशिएंट है। तो किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं सोचना चाहिए कि 3 साल हो गए बीटेक में, मौज कर ली, मस्ती कर ली, अब गेट की तैयारी नहीं हो पाएगी। गेट की तैयारी जब भी हो सकती है। और दूसरी बात, जैसे शीट्स की बात हुई 2020-21 में, तो ओएनजीसी शीट्स नहीं निकाली, तो मेरे साथ वाले जितने तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, उनमें से 50 to 60% बच्चे इस वजह से तैयारी छोड़ गए कि शीट्स नहीं आ रही। तो इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं जो डिटरमिन्ड है, परसिस्टेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको इससे भी फायदा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम गेट की तैयारी छोड़ देंगे, वो तो हमें करनी ही करनी है। मेरा तो बेसिकली क्या था कि मुझे शुरू में क्लियर था माइंड में कि मुझे प्राइवेट जॉब करनी ही नहीं है। मुझे लगता था कि प्राइवेट जॉब मेरे लिए बनी ही नहीं है, मतलब किसी के अंडर नौकरी करो, वो उसके अंदर और करो, वो अपना थोड़ा माइंडसेट नहीं था। तो इसलिए मेरा तो पहले क्लियर था कि ओएनजीसी, और एक ही ऑप्शन है पेट्रोलियम में ओएनजीसी, तो उसी के लिए तैयारी करनी थी। तो 4th ईयर में ही शुरू की थी मैंने यूपीएस, जैसे जय शहर भाई ये मेरे सीनियर थे। तो 4th ईयर में जब ये पास आउट हुए, जब मैंने शुरू की थी तैयारी, तो हमारे टीचर थे आरपी सोनी सर थे, और एक दो और अच्छे टीचर थे जैसे। तो पहले तो मैंने सबसे पहले क्या करा, बेसिक्स पे फोकस करा, क्योंकि अगर आप सीधा बिना बेसिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने लग जाओगे, या फिर कोई बहुत सारा मटेरियल है, 5 बुक है, 6 बुक है, प्रोडक्शन की तो इतनी सारी बुक्स है, कहाँ से पढ़ोगे आप। तो आपके बेसिक्स सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। न्यूमेरिकल वगैरह सब हो जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले बेसिक्स पे तैयारी शुरू करी। 2020 में पहली बार गेट दिया, तो उसमें मेरी 64 रैंक आ गई थी। तो उसके बाद मतलब इतना मैंने कुछ खास यूं भी नहीं था कि 100% डेडिकेट होकर तैयारी करी हो। तो मुझे लगा कि हाँ, ये एग्जाम मेरे लिए बना है, मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो उसके बाद यूपीएस से पास आउट हो गए, तो 2020 के रैंक के हिसाब से मुझे आईएसएम में मिल गया था एडमिशन। तो उसके बाद 21 में कुछ खास तैयारी हो नहीं पाई, कोविड आ गया, तो थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी। तो 21 का मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, 21 का मैं दे ही नहीं पाया एग्जाम। तो उसके बाद जैसे शीट्स नहीं आई 21 में भी 20 में भी, तो सोचे तैयारी करनी है नहीं करनी। बट फिर मेरे साथ वाला जो सर्कल था उसमें एक भी नहीं बचा, मैं अकेला रह गया था, सबने तैयारी छोड़ दी थी। सब डाटा साइंस में घुस गए थे या फिर मशीन लर्निंग में घुस गए थे।
तो फिर बट मेरा शुरू में क्लियर माइंडसेट था, नहीं भी करनी है, तो अब की बार अकेला ही तैयारी कर रहा था मैं। और सबसे जरूरी बात है, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, और जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप नहीं कर पाओगे। खुद के नोट्स बनाओ, और वो बहुत जरूरी होते हैं। आखिरी के 15-20 दिन फॉर्मूले लिखो जैसे अलग से। तो अब की बार 2-2.5 महीने जैसे मोटिवेट करा, कुछ ऐसे सीनियर्स थे, उन्होंने ओएनजीसी में भी हैं एक तो फिर उसके बाद एग्जाम दिया तो बढ़िया रैंक आई अब की बार। देखते हैं ओएनजीसी का शीट्स क्या होता है क्या नहीं, बाकी सही है ये। बहुत बढ़िया हर्ष। हर्ष, मैं एक हर्ष की बात को एक मतलब एग्जाम्पल के रूप से, मेरे एग्जाम्पल के रूप से बताना चाहूंगा। जैसे उन्होंने हर्ष सेट की ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 3-4 साल निकाल दिए और आपको कुछ नहीं आता है तो मतलब आप गेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं 4th ईयर में था, मेरे एक्सन मोबाइल आई थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए, एमआईटी पुणे। आई हैव पास आउट फ्रॉम एमआईटी पुणे। तो उस टाइम मुझसे इंटरव्यू में पूछा था कि मोबिलिटी क्या होती है, जो कि K/μ होता है डार्सीज लॉ में। मुझे बहुत बाद में जाके पता लगा। तो मैं उस सिचुएशन पे था कि मेरे को डार्सीज लॉ अच्छे से नहीं पता है कि डार्सीज लॉ क्या होता है, मोबिलिटी क्या होती है, वो भी 4th ईयर में। एंड उसके तो मतलब मेरी वो सिचुएशन थी। एंड उसके बाद मेरा जब उस टाइम मैंने गेट दिया तो मेरे 16 मार्क्स आए थे। ये रैंक नहीं है, 16 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस पॉइंट से लेके अगर मेरे जैसा बंदा 25 रैंक ला सकता है, 8वीं रैंक ला सकता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हर्ष की बात एकदम बिल्कुल सही है। बस एक वो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भैया मैंने फाड़ देना है गेट का पेपर, निकाल के रहूंगा मैं। तो 6 महीने मोर देन इनफ है। उसके कोई मतलब 6 महीने में आप अपने बेसिक्स अच्छे से कवर कर सकते हो। और अगर आपके एक बार बेसिक्स हो गए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, वो सब हो जाता है, वो सब सीख जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिक्स हर्ष, बहुत बड़ा गेम खेलते हैं हम। बेसिक्स बहुत बड़ा बिल्कुल गेम खेलते हैं। 50% of the numericals are like from low GH equation of pressure that we have studied in 12th बिल्कुल standard. बिल्कुल। So if your basics are strong, then you are going to Other 25% questions are from unit conversion. yeah. So Again, so that we also studied in your high school let's time. get to that mode now. Let's Unit let's conversion is the key. it's super key. I mean, very very important. So anyone who is taking this session and he wants to go away with this lesson that unit conversion is important, you can leave now. You can go score great marks with just unit conversion. राइट। So let's focus, Divyansh. Let's focus now. Everyone's preparation strategies and all. That's really interesting. Yeah. Yes, so first of all, I would like to ask from Srinath कि जब आपने इतने साल प्रिपरेशन की, मतलब obviously there are many people who are giving attempts year by year again and again. So like what really kept you going and how did you मतलब how did you push yourself कि यार मेरे को रोज पढ़ना है, ये करना है। मतलब although होता है ना कि जब ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं तो वापिस से उन चीजों को पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, राइट। तो उसमें आप मतलब एक आई थिंक मेरे काफी बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई है जो मैंने भी डिस्कशन किया। तो वो क्या आपने मतलब ऐसा कुछ किया कि वो इंटरेस्ट बनाए रखा एंड डेली बेसिस पे उसको अपने आप को पुश करते गए? तो सबसे पहले तो कैसा था कि हम जिंदगी में किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, इवन हम भगवान से, खुदा से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम आईने में खुद के देखे तो हम खुद से झूठ कभी नहीं बोल पाते। तो हमेशा से पहला ऐसा रहा था कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और इसमें मेरे को मतलब डटे रहना है, पिच पर से आउट नहीं होना है। कि जब तक अगर हम शाम तक टिके रहे थे, तो उनका मतलब जो है वो एक फेमस डायलॉग है क्रिकेट का, शाम तक खेलेंगे तो इनकी फट जाएगी। तो वैसा है कि पिच पर टिके रहना जरूरी था। और अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने जाए तो कैसे कि मेरा ऐसा था कि मेरी नोट्स देखे तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 नोट्स से भी ज्यादा नहीं, बल्कि पूरे कंबाइंड पेट्रोलियम की। श्रीनाथ, आप तो थोड़ा हाँ, थोड़ा एक बार वॉइस अपना वापस कनेक्ट कर सकते हैं चैट में? बोलो 1% सेट की वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, नाउ इट्स क्लियर। हेलो ओके, या गो ऑन हेलो। श्रीनाथ, प्लीज गो ऑन। ओके, तो मेरा पहले से ऐसा रहता था कि ज़्यादा नोट्स नहीं बनाता था मैं, कि पूरे पेट्रोलियम की मेरे पास सिर्फ अगर कंबाइन करें तो भी 4 या 5 छोटी छोटी नोटबुक्स थी। तो उसके अंदर ऐसा रहता था कि हम इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना याद रखो। और वहाँ पे अगर, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी है, तो उसका एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो हम इतना याद रखते हैं, और उसमें इतना बेसिक के अंदर इतना याद रखते हैं कि अगर यहाँ से भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे हम वहां से उसको कुछ भी निचोड़ के उसका आंसर निकाल सकते हैं।
तो स्ट्रेटजी ये रहती है कि एकदम छोटा छोटा करके बहुत कम याद रखो, लेकिन बहुत ज्यादा अगर याद रखोगे तो क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना जरूरी के 15-20 इक्वेशन रट डालेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक इक्वेशन रट के जाए ना तो भी वो बाकी के 5 या 6 इक्वेशन उसमें से निकाल सकता है। तो अगर आपकी डेटा साइंस की भाषा में बोले तो अपनी रैम बने उतना उसको ज्यादा भर के मत रखो, रैम खाली रखो तो प्रोसेसिंग पावर ज्यादा अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। बिल्कुल तो सही। वही रहता था कि बने उतना कम याद रखो, लेकिन ऐसे याद रखो कि वहां से अगर आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप वहां से वो डिराइव कर सको, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ जो अपने बोलते हैं कि एप्टीट्यूड की स्किल यूज करके वहां आप उसको क्रैक कर सको। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, जैसे हर्ष भाई ने बोला कि नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई यस, टोटली आई अग्री। मतलब मैंने दो तीन बार प्रिपरेशन किए, तीनों बार नोट्स बनाया फ्रेश बिल्कुल स्टार्ट से। बट राइट। इज इट द केस विद एवरीवन, लाइक नवदीप एंड श्रीनाथ, आप लोगों ने भी नोट्स हर साल बनाए हैं एंड आपको नो, उन्होंने मतलब किस तरह से जैसे हेल्प किया? जैसे कि नोट्स बनाने में क्या होता है कि अगर आज मैं अगर गेट 2023 दे देने की सोचूंगा ना, तो उसमें भी मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि मेरे नोट्स के अंदर अभी नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हमने एक बार 2017 में नोट्स बना दी तो वो फाइनल है। हर बार जैसे कि अपने आप को बीट करने की सोचना है कि अगर मैंने गेट के अंदर 62 रैंक लाया तो ये मेरी लिमिट है, इसके बाहर तो मुझे नहीं जाना है। अगर मैं 60 लाता हूँ तो उसके बाहर नहीं जाना है। तो वो एक अंदर माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे को बाकी के स्टूडेंट्स के अलावा सबसे पहले मुझे खुद से लड़ाई लड़नी है और मुझे खुद को बीट करना है। तो अपने आप अपनी नोट्स बेटर बनेगी, और कि हमको मिलेगा कि अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ा था, चलो ये मैं लिख लेता हूँ नोट्स के अंदर। तो वो नोट्स धीरे धीरे बिल्डअप होती हैं। और अगर हमें कोई ना कोई का रेफरेंस लेके सीखना चाहिए ना, लेकिन वो सीख के हमें ऐसा सोचना चाहिए कि उस बंदे की नोट्स को मैं कैसे बीट कर सकता हूँ, कि उसकी नोट्स में ऐसा क्या नहीं है जो मेरी नोट्स में है। और एक एक लिमिट आ जाती है कि एक बार आप सेचुरेट हो जाओगे, कि जो कि मेरा सेचुरेशन 2019 के अंदर, कि 2019 के अंदर मेरा बेसिक्स का इतना सेचुरेशन था कि उसके बाद सिर्फ मेरे को सिर्फ ब्रश अप करने की जरूरत पड़ती थी, और मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करता था गेट 2022 के अंदर। और थियरी तो हार्डली टू हार्डली 1 या 1.5 मंथ में रिवाइज हो जाती है पूरी, अगर थियरी का बात करें तो और अगर कैलकुलेशन में ऐसा होता है कि 65 क्वेश्चन में से ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो हम देख के ही छोड़ देते, क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं, कि ये मैंने नहीं पढ़ा तो मेरे को देखना ही नहीं है क्वेश्चन। तो वहां पे एक बात आती है कि ईगो की, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पोरोसिटी, अब पोरोसिटी पेट्रोलियम का एकदम बेसिक से बेसिक टॉपिक होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पोरोसिटी का क्वेश्चन आता है अगर वो हार्ड हो जाता है तो उसके अंदर इतना डीप चलते हैं कि उसके अंदर 5 या 10 मिनट बिगाड़ देते हैं। लेकिन वहां पे अपने ईगो को साइड में रख के आना है। अगर क्वेश्चन 20 या 30 सेकंड के अंदर आपको लाइट नहीं होता कि इस क्वेश्चन में ये करना है, तो चाहे कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, 1+1=2 हो और नहीं आ रहा हो, तो फिर भी छोड़ देने का, क्योंकि कोई बच्चा सारे क्वेश्चन करके नहीं आने वाला। तो हम अगर एक सेफ मार्जिन सोच के चले गए कि आप 75+ लेके आते हो तो आप बहुत ही सेफ हो जाते हो, और 80+ तब बहुत सेफ होते हो। और अगर 75 को देखे तो 12 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आप छोड़ सकते हो, कि सबसे पहले आपको 75 कलेक्ट करना है, उसके बाद उसके ऊपर जाना है। तो ये थोड़ा माइंडसेट ऐसे चेंज करोगे तो सही रहेगा। हाँ, इसमें ये ईगो वाली बात मेरे को बिल्कुल सही लगी। ईगो वाला काफी लोगों के साथ हुआ है कि मेरा कोई टॉपिक स्ट्रांग है तो फिर मैं हाँ, ये क्वेश्चन तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ। सही है। इसके पीछे फिर टाइम बहुत खराब हो जाता है। ये सही है। ये जब जब 220 का मैंने दिया था उस टाइम पे एक क्वेश्चन था कुछ पंप से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन मैंने बहुत बार किया था, तब मेरे को लगा कि इस क्वेश्चन को करना ही है। मैंने उस क्वेश्चन के अंदर 10 मिनट खराब किए थे। सब किसी के साथ स्टोरी है। 2020 में मेरे साथ भी ऑफशोर का था क्वेश्चन और सेम स्टोरी हुई थी। दिव्यांशु सर है हमारे वेल टेस्टिंग के एक्सपर्ट 2019 वेल टेस्टिंग का मेरे पास 2 सजेशन है। बहुत एक सजेशन पे तो बहुत लोग हंसोगे, दूसरा सजेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट सजेशन इज अपना पेट साफ करके जाइए गेट एग्जाम में, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो चुका था इन 2019 बिकॉज ऑफ माय डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। सो मेक श्योर यू हैव दैट थिंग सॉर्टेड। द सेकंड थिंग इज डेफिनेटली आपको अपना ईगो घर पे रख के आओ। आप कितने भी बड़े गैंगस्टर हो तो भी आप वहां पे गैंगस्टर नहीं बनना चाहते हैं। यू कैन डू द क्वेश्चन, मैं अभी बोल रहा हूँ, इफ यू फाइंड इट लाइक यू कैन डू इट,
बाद में आके I will tell you, it's your question, you can do it. But in the paper, if it takes more than 2 minutes to read it, you know, and find the intuition, that's not the question you should attempt. Just skip it. So yeah, and I see in the chat now people are pushing us to ask something very important. So let's push. हर्ष से पूछते हैं ये चीज कि बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए. तो हर्ष, लेट्स स्टार्ट विद आपको कौन कौन सी बुक्स पसंद आई है? रिजर्वोयर और कौन start with topic Yeah. wise, yes, reservoir. या रिजर्वोयर. हर्ष, आप रिजर्वोयर की बुक्स बताइए. रिजर्वर की बेसिक तो तारिक अहमद ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, और मैंने तो सिर्फ तारिक अहमद ही पढ़ी है, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ी. बट उस बुक को मैंने अच्छे से पढ़ा है, बस एक ही बुक को. उसके अलावा जैसे आप प्रोवाइड करते हो क्वेश्चंस वगैरह, तो वो बेसिकली क्वेश्चंस क्या होते हैं, सारे बुक से ही कवर हो जाते हैं. हमें एक बुक से हमारी थ्योरी सारी क्लियर हो जाएगी. क्वेश्चंस आपका जैसे मटेरियल है उससे सारे बुक्स के क्वेश्चंस वो हो जाएंगे क्लियर. तो हमें यूं नहीं है कि 3 बुक पढ़ने की जरूरत है. अगर एक बुक से हमें सब समझ आ रहा है तो वो मतलब बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. क्वेश्चंस तो आपको मटेरियल में भी मिल जाएंगे. उसके बाद ड्रिलिंग के लिए मैंने राबिया पढ़ी है, बिल्कुल बेसिक्स बुक्स पढ़ी है मैंने सबके लिए. और यहाँ एपीआई की है जो ड्रिलिंग वाली, एक वो भी, उसपे थोड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह करे हैं मैंने. प्रोडक्शन के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी आज तक. प्रोडक्शन के लिए हमारे टीचर थे आरपी सोनी सर. आरपी सोनी सर हमारे यूपीएस में थे. उनको वैसे कोई नहीं सुनता था, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो मैंने उन्हीं की क्लास में नोट्स बनाए थे और उन्हीं से बेसिक्स क्लियर हुए थे. और प्रोडक्शन के न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज्यादा मटेरियल आप कहीं से भी कर सकते हो. और आजकल एक और ट्रेंड देखने में मिल रहा है गेट में कि प्रोडक्शन के क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं. अब की बार सरफेस प्रोडक्शन सेपरेटर्स, इनसे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया. पिछली बार भी जैसे डाउन होल भी जाओगे तो हो रहा है, बट यूं नहीं है कि आप स्किप कर दो. प्रोडक्शन की थ्योरी बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो. 15 बुक है प्रोडक्शन की. बट आपको अपना जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने राहुल ने कि हाउ टू मैनेज टाइम. तो आप टाइम इस तरह मैनेज करोगे कि आप पिन पॉइंट पढ़ो, यूं नहीं है कि आप सब कुछ ही पढ़ने लग जाओ. तो ये बहुत है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लियर होने चाहिए. एक बुक है तो इसी से पढ़ूंगा मैं, यूं नहीं है कि मैं इससे भी पढ़ लूं, उससे भी पढ़ लूं, इससे भी पढ़ लूं. आप बाकी आपको न्यूमेरिकल्स और मटेरियल बहुत मिल जाएगा कोचिंग का भी, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड वेल टेस्टिंग के लिए फिजिक्स ओनली वो वही बुक है. एओआर के लिए तो मैंने 2020 में जब तैयारी की थी तो एस के नोट्स थे, वो मैंने वहां से पढ़ा था. एओआर का आपको मटेरियल मिलेगा वहां पे, एस के नोट्स है वहां से. और एओआर में तो बेसिकली कुछ ज्यादा आता भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स आते हैं एओआर में. न्यूमेरिकल्स मटेरियल से कर सकते हो. और बाकी तो छोटे मोटे सब्जेक्ट रह गए, उनमें तो किसी भी कोचिंग के आप उठा लो मटेरियल और वहां से पढ़ लो. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा हर्ष भाई कि जैसे आपने बोला बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, राइट. वेल टेस्टिंग के लिए आपने बोला जॉन ली. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने आज तक वेल टेस्टिंग जॉन ली से नहीं पढ़ी है. मैंने वेल टेस्टिंग भी तारक अहमद से पढ़ी है. तो लाइक एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा मेरे हिसाब से अच्छी अप्रोच ये रहती है कि यार अगर आप जैसे आपको पता है कि वेल टेस्टिंग 2 बुक्स में है, एक जॉन ली में है, तारक अहमद में, ठीक है. एलपीडेक में आई एम नॉट श्योर कि यार वेल टेस्टिंग है या नहीं है, मतलब मैंने एलपीडेक भी नहीं पढ़ी है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है. तो अभी इस एक मेरे हिसाब से क्या रहता है, बेटर अप्रोच है अगर आपके पास किसी भी टॉपिक के मल्टीपल मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो जस्ट एक बार ना आप 5-10 मिनट में गो थ्रू कर लो कि किस किस तरह से आपने क्या क्या ऊपर से ओवरव्यू कर लीजिए कि इस बुक में इस तरह से दिया हुआ है, ये ट्रेंड है, पहले ये टॉपिक फिर ये टॉपिक, फिर आप दूसरी बुक में देखिए. एंड फिर सबसे अच्छा यही रहता है कि आप अपने इंट्यूशन से जाइए कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि जहाँ से चीज़ इजीली समझ आ जाएगी मैं वहां से पढ़ूंगा. मेरे साथ तारक अहमद में यही था कि मैं तारक अहमद की लैंग्वेज से मैं बिल्कुल वाकिफ था कि तारक अहमद, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने तारक अहमद से पढ़ी हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से ये था कि अब तारक अहमद पहले पढ़ी हुई है तो वहीं से एक बार ट्राई करते हैं वेल टेस्टिंग क्या है. एंड जो मेरे को वेल टेस्टिंग वहां से समझ आया, मुझे और कहीं से अच्छे उससे अच्छा कहीं नहीं समझा. तो ये सिर्फ इसी तरह से अगर अप्रोच रखेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्प हो सकता है. तो नहीं, इस बेटर है कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ करना, ये एक इसमें हेल्प कर सकता है. एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि अक्सर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है ना मटेरियल के पीछे भागते हैं कि ये भी ले लूं मैं, वो भी ले लूं, उससे कुछ नहीं होगा. जैसे हर्ष ने कहा है तारिक अहमद रिजर्वायर की तारिक अहमद से ही पढ़ी है, तो भाई एक उठा लो किताब
और उसको पहले बढ़िया से रगड़ डालो, और फिर बाद में जब रिवीजन का टाइम आएगा तब इधर उधर और किताबें देख लो एक बार कि क्या है, क्योंकि आपकी तैयारी बढ़िया होएगी तो आप अपने आप सारी किताबें यूं लगेगी कि पढ़ी हुई है, इनमें कुछ नया नहीं है। ज्यादा मटेरियल के पीछे भागने की बजाय बेसिक से शुरू करो। तारिक अहमद हर एक पेट्रोलियम इंजीनियर्स के पास होती है, और स्टार्टिंग पॉइंट भी एक किसी ने पूछा कि व्हाट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे हिसाब से, तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है कि रिजर्वायर से स्टार्टिंग करो, तारिक अहमद से स्टार्टिंग करो पहले चैप्टर से, और फिर धीरे धीरे अपने आप आपका रास्ता आगे खुलता जाएगा। Okay, so we'll ask the same जैसे question एक to- बार मैं Yes. यश गुप्ता ने क्वेश्चन करा है कि 6 महीने, जैसे मैंने बोला था इनफ है, बट वो 6 महीने में हर दिन कितना टाइम देना होगा? तो 6 महीने में आप पहले दिन से ही ऐसा नहीं है कि 10-10 घंटे पढ़ने लग जाओगे। आप थोड़े से शुरू करो। आप शुरू में 3 घंटे से शुरू करो, 4 घंटे से शुरू करो। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा आप अपनी सीटिंग बढ़ाओ। जैसे आप शुरू में 4 घंटे कर रहे हो तो 2 महीने रह गए तो आप 7 घंटे कर दो। 1 महीना रह गया तो आप 10 घंटे, 11 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो आप अगर शुरू से ही बिल्कुल यूं लग जाओगे कि 12-12 घंटे पढ़ने हैं, तो आपका ये बहुत हाई चांसेस है कि आपका 2 महीने में, 3 महीने में आपका सैचुरेशन लेवल रीच हो जाएगा, और आप सोचोगे बहुत हो गया यार, अब छोड़, अब नहीं बढ़ता। तो इसको एज ए स्ट्रेस मत लो एग्जाम को, मतलब इसको ये लो कि हाँ ये तो मुझे करना ही है और ये होगा धीरे धीरे। आप जैसे यूं नहीं, आप अपने साथ में, जैसे मैं बॉक्सिंग करता हूँ, तो मैं अब की बार जैसे एग्जाम दिया तो मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी कर रहा था 2 महीने पहले तक। तो आप अपना माइंड को चिल रखना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। शुरुआत थोड़ी थोड़ी करो, और जैसे एग्जाम आएगा तो फिटिंग बढ़ाते जाओ, तो टाइम बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा ऐसे आप। So yeah, we'll extend the same question to Mr. Srinath also. So we would like to know your book list, starting from Reservoir. तो रिजर्वायर के लिए तो सबसे बेसिक बुक जैसे बताया कि तारक अहमद है, और मैं पर्सनली अभिजीत दांडेकर से स्टार्ट करता था। अभिजीत दांडेकर के कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स, उसके बाद तारक अहमद। फिर जैसे वेल टेस्ट के लिए बताया जॉन ली एंड तारक अहमद, वो इनफ है। ड्रिलिंग के लिए हुसैन राबिया, एच राबिया। और जैसे हर्ष ने बताया कि प्रोडक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, तो वो आपको जहाँ से मटेरियल मिलता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हो, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो उसके अंदर। और बाकी जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लॉगिंग है, देन ऑफशोर है, अनकन्वेंशनल है, तो वो आपको कहीं भी इंटरनेट पर से अच्छा मटेरियल मिलता है, वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन लॉगिंग के लिए एक पॉल ग्रोवर करके एक बुक अच्छी है, उसके बाद माल्कम राइडर के बुक अच्छी है। तो लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट बुक थी पॉल ग्रोवर करके। फिर ऑफशोर के अंदर हमारे एक सर थे जो कि दिव्यांश को बहुत पता है कि एसएसपी सिंह सर। तो अगर प्रोडक्शन और ऑफशोर के लिए अगर आप उनका मटेरियल पढ़ के जाओ तो वो मोर देन इनफ है। उसके बाद अनकन्वेंशनल के लिए वहाँ पे एक हमारे सर थे, आशीष सरकार सर, जो कि इंडिया के अंदर बहुत फेमस हैं। तो जियोलॉजी और अनकन्वेंशनल की हम उनका मटेरियल पढ़ते थे। तो और फिर मैथ्स के लिए वो एक मैथ्स अभी तक ऐसा रहा है कि पेट्रोलियम के अंदर मैथ्स ये लोग बहुत ही इजी पूछते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हर बार इजी आ सकता है, कि हमें चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि आपने पूरा पेट्रोलियम एकदम अच्छे से किया हो और आपने ऐसे देखा हो कि लेगेसी ऐसी रही है कि हमारे अंदर मैथ्स के क्वेश्चन हार्ड नहीं आते। लेकिन अगर आप सोच लीजिए कि आपने पूरा पेट्रोलियम अच्छे से पढ़ा और उसी वक्त उसी साल गेट के अंदर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हार्ड आ गए, तो आप क्या करोगे? तो ऐसा मत सोचो कि मैथ्स मेरे को बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अगर मैथ्स करना है तो पूरे, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिकल का मैथ्स है, मैकेनिकल का मैथ्स है, कंप्यूटर का मैथ्स है, वो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ उन लोगों का लेवल कैसे होता है, हमारा लेवल कैसे होता है। तो मैथमेटिक्स इज द की, कि मैथमेटिक्स में आप अगर पूरे नंबर लाते हो तो आपका एक, अगर पेट्रोलियम में कुछ छूट भी जाता है तो वो आप कवर कर सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर। फिर अगर श्रीनाथ भाई, टेक्निकल आपके अभी मैथ्स और एप्टी में कितने नंबर आप बताएंगे? मैथ्स के 30 में से। अंदर मैंने मेरे एप्टी में फुल मार्क्स हैं इस बार, और मैथ्स के अंदर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, एक थ्योरी का क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, तो मतलब वो वो पता नहीं 30 वाले कितने, 30 पोर्शन का जो रहता है मैथ्स एप्टी इंग्लिश, उसमें 30 में से कितने आपके? 27-28 ठीक इस है। बार। नवदीप आपके कितने हैं? मेरे से हम 27। हर्ष आपके कितने हैं?
27 है, एक मुझसे मैच में मिस्टेक हुई, सिली मिस्टेक, बाकी सब सही है। ठीक है। मैं बस ये इसलिए पूछ रहा था बिकॉज जो भी टॉप गेट रैंक होल्डर्स हैं उनके जनरली 27 26 मतलब 25 से तो उनके ऊपर रहते ही रहते हैं उससे। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है आपका रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने में, बिकॉज 70 मार्क्स का जो पेट्रोलियम का जो नॉलेज है वो सब उसके पीछे भर रहे हैं, सब उसके लिए रगड़ रहे हैं, दे आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर दैट। बट ये 30 मार्क्स को कई लोग मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे मैथ से एप्टी लास्ट में एक महीने में देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो अगर आपका इस 30 में अच्छा आ जाता है और 70 पे आपका नॉलेज भी है और ठीक ठाक, तो आपका रैंक बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने श्रीनाथ आपको बीच में रोका, आई एम सो सॉरी। जी। गो ऑन प्लीज, गो ऑन। फिर कुछ बच्चों का माइंडसेट ऐसा होता है कि हम लोग अगर 4 क्वेश्चन हमें नहीं आते तो अगर हम सिर्फ बाय गैसिंग करके टिक करते हैं तो अगर एक भी सही हो जाता है तो हमारा वो कवर कर लेगा, और अगर कोई और एक सही होता है तो हमें बोनस मिल जाएगा। लेकिन ये सबसे घटिया और सबसे बेकार टेक्निक है गैसिंग करने की। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आपको गैस करना है तो उसके लिए भी आपको 15 से 20 सेकंड सोचना पड़ेगा। तो ऐसे 15 से 20 सेकंड पर क्वेश्चन के निकालो तो भी आप 3 से 4 मिनट गैस करने में निकालते हो। तो इससे अच्छा 3 से 4 मिनट में कोई एक ढंग का न्यूमेरिकल 2 नंबर का हो सकता है। तो ऐसे करो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको देखो भी मत, दोबारा भी मत देखो, तो उसको छोड़ ही दो। और अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार अगर पूरा बेसिक्स हो जाए उसके बाद टॉपिक की लिस्ट बनाओ, जैसे कि पोरोसिटी है। तो आज तक मैंने जो जो पढ़ा उसके अंदर से मुझे पोरोसिटी कैसे मिल सकती है, या फिर अगर मैं पेपर सेटर हुआ तो मैं क्वेश्चन टफ बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ ट्विस्ट लाने के लिए कैसे मैं क्वेश्चन को घुमा सकता हूँ। तो अगर आप वहां पे आपको सेचुरेशन आ जाए कि हाँ अब पोरोसिटी के अंदर इसके बाहर का कुछ नहीं आ सकता, तब जाके आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरा पोरोसिटी टॉपिक क्लियर हो गया है। और फिर ऐसे ऐसे करते सारे करते जाओ, पोरोसिटी, परमिलिटी, स्कीम, ये सब तो मतलब हर बार होते हैं कि इनके क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन ऑफ वैरायटी होती है जो क्वेश्चन की, वो भी हमें साथ साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ एक बार बेसिक्स खत्म होने के बाद की बात है। अगर बेसिक्स खत्म नहीं और हम सोचते हैं कि मैं पोरोसिटी के 10 टाइप्स के वैरायटी निकाल लूँ तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। कि सबसे पहले जैसे बताया बेसिक्स कर लो, उसके बाद थोड़ा डीप जाओ कि हाँ अब पोरोसिटी और कैसे निकल सकती है, परमिबिलिटी कैसे निकल सकती है, स्कीम कैसे निकल सकती है, इसमें से क्या नया क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर ये सब कुछ होता है। एंड सबसे एक और की होती है कि आपका कैलकुलेशन पावर इंक्रीज करो। कि जब मैं पर्सनली बताऊं तो मैं गेट के अंदर करीबन पहले 1 या सवा घंटे के अंदर मैं पेन उठाता ही नहीं हूँ। कि वो जो होता है ना राउंड 1 2 3 मैं फॉलो करता हूँ। कि राउंड 1 के अंदर ऐसा होता है कि सबसे पहले आप वो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसको देखो। अगर आपको क्वेश्चन आता है सीधा कि आप 100% श्योर हो तो वो आप टिक कर दो। अदरवाइज आप 1% भी डाउट है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर दो। और अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको वैसे ही स्किप कर दो। तो ऐसे करके आप 65 नंबर के क्वेश्चन पे जाओ। तो इसमें हार्डली 20 से 25 मिनट होती है और आपको अंदाजा आ जाता है कि पेपर कैसा है। तो वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा पेपर छूट गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि पीछे पेपर कैसा है। तो ये जो राउंड 1 होता है वो हमारे लिए इसलिए होता है कि हमें पता चले कि पेपर कैसा है, और हमारे उसके अंदर बोनस मिलते हैं। कि जो बोलते हैं कि एकदम शॉर्ट शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पोरोसिटी इज इक्वल टू पोर वॉल्यूम डिवाइड बाय बल्क वॉल्यूम। तो ये एकदम अगर जैसे शॉर्ट शॉर्ट वाला क्वेश्चन तो हम बिना पेन उठाए बिना पेपर उठाए हम लोग कर सकते हैं। तो ये राउंड 1 में करो। फिर राउंड 2 के अंदर ऐसे आओ कि जो मुझे पता है कि मान लीजिए कि अब स्किन फैक्टर की बारी है, स्किन फैक्टर पूछा गया हमसे, तो डैमेज जोन की परमिबिलिटी चाहिए, फिर हमें रिजर्वायर की एवरेज परमिबिलिटी चाहिए, रेडियस चाहिए, और वेलबोर की रेडियस चाहिए। अगर हम क्वेश्चन सबसे लास्ट में देखो कि पूछा क्या है, स्किन फैक्टर पूछा है, तो जैसे हमारा माइंड अब ऐसे सोचेगा कि मेरे को स्किन फैक्टर पूछा है और अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो जैसे जैसे वो लोग कुछ पैरामीटर्स देते जाए कि हाँ भाई मेरी डैमेज की परमिबिलिटी ये है ये है, तो अपना माइंड खुद ब खुद सेट कर देगा कि हाँ अब ये करेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर मोर जनरलाइज वे में बताऊं तो जैसे कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर हमें आंसर मांगता है वो लोग की ऑप्शन, मतलब सी फाइंड करना है हमको, और उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर ऑफ दिए होते हैं, वो उनको हम ए कंसिडर करें। तो जो हमें पैरामीटर्स गिवन है उस पे से अगर हम लोग बी निकाल ले तो हमें बी पे से सी मिल जाएगा, और हमें सी पूछा होता है। तो जनरली
मोर देन 75% क्वेश्चन का यही होता है कि सी हमें फाइंड करना होता है, हमें ए दिया गया होता है, हमें बी निकालना होता है कि ए से बी मिलेगा तो बी से सी भी मिल जाएगा। तो ये एक मैंने बोला जैसे पहले कि इतना कम याद रखो जिससे आप इतना सारा आउटपुट निकाल सको। और ऐसे ही राउंड 2 खत्म होने के बाद अगर कुछ बचता है कि हाँ ये क्वेश्चन पोरोसिटी का था और हार्ड क्वेश्चन था जो मैंने राउंड 2 में छोड़ दिया है, तो वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करो राउंड 3 के अंदर। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपको सबसे पहले राउंड 1 खत्म होने में आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा है, तो मेरे को कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर पेपर हार्ड रहता है तो आप अगर 55 के आसपास भी अच्छे से एक्यूरेसी से करके आते हो तो आप बहुत सेफ हो। अगर पेपर एकदम इजी है तो आप 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पर भी आप सेफ नहीं हो। तो प्रे करो कि पेपर हार्ड आए, और पेपर हार्ड आता है तो अपने लिए अच्छा होता है कि दूसरों के नंबर कम आने के चांसेस हैं अगर हम एक्यूरेसी रखें तो। अगर हम उसमें गैस वर्क करके अगर हम एक्यूरेसी नहीं मेंटेन करेंगे, अगर 0.66 भी नेगेटिव होते हैं तो जो 15 से 20 की रैंक की रेंज होती है वहाँ पे 0.66 में भी हम 3-4 रैंक पीछे चले जाते हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव का भी माइंड में रख के चलना होता है। एंड एप्टीट्यूड के अंदर अगर इंग्लिश का कोई क्वेश्चन होता है लेंथी होता है और नहीं आता, जैसे कि कुछ कोर ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 2019 में जोफ्रा वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी था, तो उसको आप जितना दूर रहो ऐसे क्वेश्चन से तो वो अच्छा रहता है हमारे लिए। तो यही है। ठीक है, थैंक यू शिव भाई। काफ़ी लोग बीटेक के हैं और कुछ लोगों के पास प्रिविलेज नहीं है कि उनके पास अच्छी फैकल्टी हो प्रोडक्शन की, या कोई लोग मेरे जैसे हैं जिनके पास प्रिविलेज होता है तो भी अटेंड नहीं करते क्लासेस। तो ऐसे नवदीप जी है। सो आप प्रोडक्शन के एक बार बुक लिस्ट बता दो क्योंकि आप शायद इससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। नवदीप जी के पास प्रोडक्शन की एक बहार है बुक लिस्ट की। याद है मुझे आईएसएम के लाइब्रेरी के अंदर शुरू के अंदर मैं तो पोरोसिटी वगैरह पढ़ रहा होता था, ये पता ही नहीं नेक्स्ट लेवल किताबें पढ़ रहे थे वहाँ पे बैठ के अकेले में कोने में जाके, किसी को बताते और नहीं थे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। तो अब जरा वो बुक ऐसी लिस्ट तो कोई बात नहीं। और लोगों को भी बताइए कि और लोग भी उसका फायदा उठाएं। आपने तो उठा लिया है। नवदीप, आप ऐसा बताएं कि यू गिव अस अ पाथ वेयर फॉर एग्जांपल अज्यूम कि बच्चों को जीरो नॉलेज है, उनको एक प्रोडक्शन या कुछ भी चीज़ है, आपको एक पाथवे देना उनको, आप प्रोडक्शन से स्टार्ट करें। और चलो प्रोडक्शन और रिजर्वर की आप बात करें, बाकी सब्जेक्ट्स हम दूसरे लोगों से लेंगे। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे फैकल्टीज भी अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं प्योरली आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ। गिव मी अ रोड मैप, मैं कैसे सीखूं? प्रोडक्शन से स्टार्ट टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। पहले रिजर्वायर से स्टार्ट करते हैं ना। रिजर्वर से स्टार्ट करते हैं, चलो। तो रिजर्वायर का ये सीन है कि जैसे आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो आप फर्स्ट तारक अहमद को पढ़ना स्टार्ट करें। तो तारक अहमद को पूरा रीड कर लो एक बार, सारे टॉपिक्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे, तो उससे आपको आइडिया तो हो जाएगा कि रिजर्वायर का ये सीन है। उसके अलावा मैं आपको रिजर्वायर की बुक बता देता हूँ, वहाँ से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। थ्योरी के लिए तारक अहमद सफिशिएंट है। तो आपके लिए जैसे एक तो उर्सिन करके बुक है जिसके अंदर जो पोरोसिटी परमेबिलिटी वाला पार्ट है उसके आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, और एलपी डेप उसके अंदर आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपको जो फ्लो थ्रू पोरस मीडिया करना है उसका आपकी हेरिटोट की बुक है, उसके अंदर ऐसा यूनिट वगैरह सबके अंदर आपके पास क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे वहाँ से। और एक उसके अलावा क्राफ्ट एंड हॉकिंस बुक है जिसके अंदर आपका जो मटेरियल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये तो पूरा रिजर्वायर का सीन है। स्टार्ट आप तारक अहमद से कीजिए, बाकी इन बुक से केवल न्यूमेरिकल लगा लीजिए, इतना सफिशिएंट है। क्राफ्ट हॉकिंस काफी बढ़िया किताब है न्यूमेरिकल के हिसाब से। मतलब शुरुआत के अंदर ही नहीं कहूँगा कि मैं पोरोसिटी पढ़ रहे हो और आप सीधा क्राफ्ट हॉकिंस में चले जाओ, पर लास्ट के टाइम में जब आप थोड़े रिवीजन वगैरह कर रहे हो न्यूमेरिकल्स चाहिए तो उस टाइम में क्राफ्ट हॉकिंस के न्यूमेरिकल लगाए जाएं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। फिर अगर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स के लिए एक और 2 बुक अच्छी होती हैं, जैसे कि नवदीप ने बताया उर्सिन तो बहुत बढ़िया बुक है, उसके अलावा क्राफ्ट एंड हॉकिंस, इसके अलावा एक एमिक्स करके भी बुक है, एंड एक इकोनॉमाइट्स करके बुक है, इकोनॉमाइट्स, वो भी बहुत अच्छी बुक है अगर न्यूमेरिकल के पर्पज से देखा जाए तो। लेकिन ये सब जैसे बताया कि सबसे पहले अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तारक अहमद इज लाइक गीता फॉर ऑल अस।
तो नवदीप जी प्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा आइडिया दीजिए। रिजर्वायर तो ठीक है, रिजर्वायर हर्ष ने भी बता दिया था, श्रीनाथ सर ने भी बता दिया था, पर अब मान लीजिए मेरे पास नहीं है बढ़िया टीचर, तो मैं क्या करूं फिर, प्रोडक्शन कैसे किया जाए? प्रोडक्शन के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए कि जैसे आर्टिफिशियल लिफ्ट है, उसकी बुक है आपके पास, बुक गो एंड आर्टिफिशियल के लिए कर्मिट ओ ब्राउन बुक है। कर्मिट कर्मिट ब्राउन। एंड कर्मिट एंड ब्राउन। तो उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर गिवन है, तो उसको पूरा नहीं पढ़ना है, बस ऊपर से बेसिक पढ़ो उसका। और इसका पूरा एक बायोंगो बुक है जिसके अंदर पूरा प्रोडक्शन है, थोड़ा शॉर्ट के अंदर पूरी बुक है वो, तो उसको भी साथ में पहले उसको पढ़ लो या तो पूरा कि बायोंगो के अंदर ये अपने सिलेबस के अंदर है पूरा। अब डिटेल में पढ़ना है, अब उसके लिए आपको मान लो सरफेस का डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए बुक है आर्नोल्ड, ठीक है। और जो आपका ये जो फ्रैक्चरिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है, वर्क ओवर सिमुलेशन, हाँ, ये सब। जो वर्क ओवर वाला टॉपिक है, उसके लिए एलन एंड रॉबर्ट अच्छी बुक है। और इसके अलावा इकोनोमाइड्स भी अच्छी बुक है। इस वर्क ओवर का हो गया, बाकी और कौन सा पार्ट रह गया? ये तो हो गया आर्टिफिशियल लिफ्ट का हो गया, तो ये प्रोडक्शन है। बाकी यार मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बुक्स के हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, हम लोग चैट बुक्स में वो बुक्स के नाम दे भी रहे हैं, बट ऐसा मत करिएगा। क्या होता है कि जैसे मेरे जैसा बंदा, मैं स्टार्टिंग में ऐसा करता था जब प्रिपरेशन कर रहा था कि यार अगर मैंने कोई चीज़ स्टार्ट की है, सपोज मैंने आज लेट्स से परमेबिलिटी स्टार्ट किया, ठीक है, मैं 2 दिन से परमेबिलिटी पढ़ रहा हूँ एंड मैं आज पहुँचा हूँ रिलेटिव परमेबिलिटी में, बट मुझे क्या हुआ, रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं समझ आ रहा है। तो मैं पहले क्या करता था यार, मैं छोड़ देता था, यार मेरे को नहीं समझ आ रहा है, नहीं छोड़ो, मतलब मैं वहाँ पे आ गया तो वहाँ पे अटक के रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। कि ऐसा भी मतलब अप्रोच मेरे हिसाब से अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ऐसा रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में 100% समझ आएगी। अगर आपको 30-40% भी वो चीज़ समझ आ रही है, आपको आइडिया लग गया कि भाई रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, तो एक बार आप आगे जाके देखिए, हो सकता है वो डाउट्स आपके अपने आप चीज़ें आगे जाके समझ आ जाए। एंड जब आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो, अगले दिन एक गाने वाने सुन के नाच वाच के वापस आओ, वापस पढ़ो, वो हो सकता है कि हाई चांसेस कि वो चीज़ आपको वापस समझ आ जाए। तो एक चीज़ पे स्टक रह के अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, ये मैं बहुत बड़ी गलती करता था स्टार्टिंग में। ये मैंने चीज़ सीखी थी दिव्यांशु से। वी यूज टू प्रिपेयर, लाइक साथ में हम लोग प्रिपेयर किया करते थे एल&टी इन्फोटेक में। तो वहाँ पे उसी उसी से मतलब ये चीज़ मेरे को मैंने नोटिस की, ऑब्जर्व की, एंड वहाँ से ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि ऐसा करना मच बेटर अप्रोच है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और बहुत चिल सजेशन दूंगा कि यू गो थ्रू अ गेट पेपर फर्स्ट, यू पिक अ गेट पेपर एंड यू लुक एट व्हाट काइंड ऑफ, आप टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चन नंबर के आगे प्रिंट करो उसको और आगे लिख दो ये प्रोडक्शन का है, ये रिजर्वर का है, ये प्रोडक्शन का है, ये रिजर्वर का है, एंड यू कलेक्ट द क्वेश्चंस अंडर वेरियस सब्जेक्ट बकेट्स एंड देन यू लुक एट देम कि यार ये प्रोडक्शन में तो ऐसा आ रहा है, 2016 से लगातार ऐसे टाइप के आ रहे हैं, 2017 में ऐसे टाइप के आ रहे हैं, एंड नाउ यू नो, जैसे सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं करते थे जो भी बोर्ड एग्जाम में कि एक पैटर्न पता चलता था, यू ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न। हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न होता ही होता है, जितना भी देखोगे आपको लगेगा कि सिमिलर कंसेप्ट्स पे आ रहे हैं क्वेश्चन, देन यू गो टू, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे एसपी की अप्लाइड ड्रिलिंग की बुक है, वो मुझे इसलिए पता चली क्योंकि बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट द पेपर सो डीप, आई अंडरस्टूड कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसे सीमेंट मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है वो वहां से उठा के दिया। तो देन आई थॉट कि क्या पता दे आर लुकिंग, एसपी से किताब आ रही है तो दे मस्ट बी, ऐसे मैंने सोचा कि देन देयर मस्ट बी अ सोर्स बुक फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो आई स्पेंड 2-3 days ट्राइंग टू फिगर आउट अ कलेक्शन ऑफ बुक्स जो कि रेलेवेंट है फॉर गेट। all the books are brilliant but relevant for gate or not, that's the important question. So you go through the paper also, हो सकता है अभी कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए हो जो कोई और बुक्स में से आ रहे हो, पूरी किताब नहीं, वो वाला सेक्शन अच्छे से कवर करो, ये टाइम बचेगा आपका, पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, रिलैक्स प्रिपरेशन करोगे चाय पीते पीते, तो बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी। सो that's my suggestion. Anything anyone would like to add? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है टेस्ट सीरीज। हाँ, So we'll start with Mr. Srinath Jani. And after that we'll Test go to series. H2O. Yeah. टेस्ट सीरीज एक कैसा पार्ट रहता है जर्नी के अंदर कि जैसे कि अब मान लीजिए कि हम लोग खुद भी एक आईपी का भी मैं एक टीम मेंबर हूँ, तो
और आईपी की टेस्ट सीरीज में बहुत उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जिनका सबसे पहले बेसिक क्लियर हो गया हो। अगर बिना बेसिक्स क्लियर करे कोई बंदा आईपी का पेपर देखेगा तो डर जाएगा। तो ऐसा होता है कि पहले आप लोग बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर कोई भी टेस्ट सीरीज उठाओ। लेकिन उसके अंदर ऐसा मत सोचो कि मेरे इसके अंदर रैंक 1 आ गया तो मेरे को ये सब कुछ आता है, मेरा पीछे रैंक चला गया तो मेरे को नहीं आता। तो और वहाँ पे ट्राई, क्योंकि टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोग भी कोई इंसान होते हैं। अब अगर कोई टॉपिक वाइज सीरीज बना रहे हैं तो अब रिजर्वायर, चलो रिजर्वायर तो काफी वास्ट टॉपिक है, लेकिन ईओआर, तो ईओआर के अंदर अगर सीरीज के अंदर कोई 5 या 6 पेपर निकालता है तो वो कोई भी बंदा कितने नए क्वेश्चन निकाल के देगा, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन की क्वालिटी कभी कभी डाउन भी हो जाती है। तो हमको वो सब कुछ नहीं मैटर करना है, हमको ये देखना है कि अगर वो पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन है तो उसके अंदर से क्वालिटी वाले क्वेश्चंस कितने थे और वो क्वालिटी वाले क्वेश्चन में से मेरे कितने सही हुए हैं। बाकी बाकी सब स्टूडेंट्स गए, उनको कितने कितने नंबर आए वो हम कुछ मैटर नहीं करता। मेरे खुद के टेस्ट सीरीज के अंदर रिजर्वायर में 50 में से 8 नंबर आते थे, 6 नंबर आते थे, तो मैं सोचता था कि ये क्या है। लेकिन हमें खुद अंदर ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मुझे रिजर्वायर आता है। तो जब फुल टेस्ट सीरीज आती है तब वहाँ पे क्या है कि 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और उनको पूरा सिलेबस कवर करना होता है। तो वो पेपर होता है, वहाँ पे थोड़ा हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये पेपर में मैं एक्यूरेसी मेंटेन करूंगा, कि ट्राई करो कि एक्यूरेसी मेरी 80% आए, 90% आए, मोर देन 90% आए, एंड नेगेटिव एक भी ना हो। कि जैसे कि 2022 का पेपर है, मेरे एक भी नंबर नेगेटिव नहीं हुआ है। तो वो बहुत मैटर करते हैं कि वो हमें प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज से। और टेस्ट सीरीज कभी कभार इतने इंपॉर्टेंट साबित होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, मुझे लगे कि ये मैंने सब कुछ कर लिया, और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने इसमें पीएचडी कर लिया। लेकिन कभी कभार जो जो इंसान काम करते हैं इसके पीछे, जैसे कि हेमंत है, फिर रोहिन करके हैं, ये सब आईपी के जो मेंबर्स काम करते हैं इसके पीछे, वो पूरा इस टॉपिक में घुस जाते हैं। और वहां से अगर कुछ अच्छा निकाल के लाते तो वो हो सकता है कि हमें अभी ना भी आता हो, तो वो हमें सीखना चाहिए कि हाँ ये नया टॉपिक था, ये मेरी पढ़ाई से बाहर था, तो ये मुझे नया सीखने को मिला। तो अगर टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता और या फिर कुछ टेस्ट सीरीज बेकार है, लेकिन हमें उसमें से नया सीखना चाहिए और हमें कभी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और अगर सेम ऑपोजिट साइड, कि अगर टेस्ट सीरीज कोई इजी टेस्ट सीरीज होती है और अगर उसमें हम टॉप कर रहे हैं कि हाँ भाई मैंने तो फुल टेस्ट सीरीज में हमें हर बार टॉप 10 में आ गया तो अब मेरा ग्रेड के अंदर भी फाइनल आ जाएगा, तो वैसा नहीं होता। कि हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज खुद को जज करने के लिए कि मुझे कितना आता है, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, और सबसे मेन की टेस्ट सीरीज कैलकुलेशन को शार्प करने के लिए करो। के अंदर वो जो कैलकुलेटर देते हैं वो सेम कैलकुलेटर गेट की रियल एग्जामिनेशन में भी होता है, तो उसके सारे बटन्स की कैसे यूज कर सकते हो। कभी बार कैसे करते हैं कि हमें इन्वर्स करना होता है तो हम लोग फिर से वो नंबर टाइप करते हैं और मतलब 1 डिवाइड बाय आंसर करते हैं, लेकिन वहां पे 1/x का ऑलरेडी एक बटन होता है। तो वो भी एक टाइम सेविंग होता है कि जितना कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर प्रैक्टिस करोगे, वो हमें एक पेपर में नहीं पता चलेगा कि मेरा टाइम सेव हुआ कि नहीं। जब हम 10-15 पेपर कंबाइन करेंगे तब पता चलेगा कि मेरा कैलकुलेशन तेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ट्राई करो कि जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि पोरोसिटी परमिबिलिटी वाले, उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में करने की ट्राई करो। कि जैसे पैरामीटर दे दिए होते हैं तो जो हमारे एप्टीट्यूड की स्किल होती है उससे ट्राई करो कि सीधा मैं कैलकुलेटर के अंदर ही वो क्वेश्चन टाइप कर लूँ और इक्वल दबाते जो आंसर आते हैं वो मैं लिख डालूँ। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि, तो वो तो मेरा सबसे बोले कि मेरा मेन जो होता है कि मेरी मेन जो पावर था वो कैलकुलेशन था। कि कुछ काफी बच्चे 2022 में ऐसे थे जिनको मेरी कंप्लेंट्स आई थी कि उनका पेपर खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा पेपर करीबन 2.5 घंटे में खत्म हो गया। मैंने रीचेक भी पेपर किया था, तो वो सिर्फ इसलिए कि मेरा कैलकुलेशन पावर बहुत तेज था, कि मैं कैलकुलेशन बहुत जल्दी से करता था और मैं कुछ लिखता ही नहीं था। कि मेरा सबसे लेंथी क्वेश्चन वो FW वाला इस क्वेश्चन में था कि FW का एक फॉर्मेट पूछा था, तो आप पेपर में देख सकते हो वो सबसे लेंथी क्वेश्चन मेरे पेपर में था। और सबको लगा कि वो एक बोएंसी वाला क्वेश्चन था वो सबसे लेंथी था, लेकिन वो मेरा सिर्फ 2 स्टेप में हो गया था, मैंने 2 ही स्टेप लिखे थे। तो वो होता है कि आप कैलकुलेटर जितना अच्छे से चलाओगे उतना आपको फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि थियरी के अंदर क्या होता है कि कभी कभार आप गलत हो सकते हो। जैसे कि अब पीवीटी एनालिसिस की कोई थियरी आ जाती है, जैसे कि कांस्टेंट कंपोजिशन एक्सपेंशन या फिर जो डिफरेंशियल लिबरेशन होता है, तो कोई कभी कभी तारक अहमद में भी अलग दिया है,
आगे के चैप्टर में और पीछे में उन लोगों ने सही किया है, तो वहाँ पे कभी कभार हो सकता है कि हम लोग थियरी में गलत हो सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ऐसी चीज है कि आपने अगर सही से किया है तो आपको गलत कोई कर ही नहीं सकता। और अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो आपको मतलब वो जो ये क्वेश्चन था इस बार की जो 2 क्वेश्चन चेंज हुए, मुझे उसी वक्त पता चला था कि ये क्वेश्चन मुझे चैलेंज करने पड़ेंगे बाद में, और मैंने किए और उन्होंने मतलब मार्क्स तो दिए भी सही। तो ये सही है कि अपना अपना कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छे से करो, और हो सके उतना बेसिक्स क्लियर होने के बाद न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करो, और कितना भी इजी क्वेश्चन हो कैलकुलेटर के अंदर करके ही करो तो मजा आएगा। So basic is the calculator and getting used to the calculator. Yeah. Right. And Getting also I used would with like to calculator हाँ is ऐसे important. एक डिस्क्लेमर देना है मुझे, ये आईपी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो किसी को लगे कि कोई आईपी की तारीफ कर रहा है, वो एक जेन्युइन तारीफ है वो। हाँ हाँ वही जेन्युइन बता रहा था। जेन्युइन तो वो प्रॉपर सजेशन ही है, तो ये मत सोचना है कि आईपी से मिले हैं तो ऐसा वैसा। स्पॉन्सर्ड होता पैसे लेते हैं तुमसे। अरेंजमेंट और अच्छी होती है फिर। हाँ, एक बात पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन हर्ष से पूछूंगा, नवदीप से ही पूछूंगा, और अगर हेमंत सर हैं कॉल पे, अ, उनसे पूछूंगा कि आप लोग ये बताओ सब बच्चों को और सब स्टूडेंट्स को और जो भी अपीयर कर रहा है कि पैटर्न क्या होता है, मतलब रिलेटिव फ्रैक्शंस क्वेश्चंस के क्या क्या रहते हैं, कितने किसके ज्यादा आते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से चीजों पे फोकस करें। जैसे श्रीनाथ ने बताया कि पोरोसिटी और परमिएबिलिटी और इन सब के क्वेश्चंस आते ही आते हैं कुछ कुछ, तो आप अपने अपने एंड से आपको जो याद आ रहा है कि ये मैंने क्वेश्चंस बहुत देख लिए तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो ऐसे कोई बताया कि टॉप नंबर 1 2 3 प्रायोरिटी के क्या क्या पढ़ें। तो ऐसे टॉपिक्स नवदीप आपसे स्टार्ट करते हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना पसंद करेंगे। बेसिकली क्या है कि आपको ये जो बेसिक है पोरोसिटी परमेबिलिटी, इनमें से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। पोरोसिटी परमेबिलिटी I think he lost his connection. नवदीप आपकी आवाज नहीं आ रही है। नवदीप का जब तक वापस आता कनेक्शन, हर्ष आप कंटिन्यू करें, आप कैसे प्रायोरिटी वाइज बताएंगे। हाँ जी, पहले तो जैसे नवदीप भाई ने बताया पोरोसिटी परमेबिलिटी सबसे बेसिक से शुरुआत, उसके बाद अगर आप थ्योरेटिकल सवाल में जाओ तो इसमें भी कैसे टाइप के क्वेश्चन पोरोसिटी परमिएबिलिटी में, एक एक एग्जांपल देते हुए चलते हैं तो मतलब आइडिया रहेगा सबको कैसे टाइप के। हाँ जी, पहले तो जैसे तारे गहमद में बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जो 2-3 टाइप के हैं कि पैराफिन कोटिंग कर दी उस, या फिर हमने किसी वाटर या किसी फ्लूइड में डिप कर दिया हमारे कोर को, तो ये 4 टाइप के होते हैं बेसिकली कि मतलब पोरोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ पोरोसिटी जैसे हम लैब में करते हैं उसी से न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो पोरोसिटी के तो बेसिकली यही है, इनसे आप अगर बेसिक समझ लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बायनेंसी फैक्टर का रोल होता है बेसिकली कि उससे हम कैसे बल्क वॉल्यूम पोर वॉल्यूम निकालें, तो वो आप कैसे भी निकाल सकते हो, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद हम थ्योरेटिकली बात करें तो फेज बिहेवियर, जो फेज बिहेवियर ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें से एक दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सारे जितने भी टाइप ऑफ ऑयल्स हैं, गैस है, वेट गैस, ड्राई गैस, इन सब के अच्छे से फेज डायग्राम आने चाहिए कि अगर टेम्परेचर प्रेशर में कुछ वेरिएशन कर दिया तो वो सब आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या अफेक्ट होगा फेज डायग्राम में, और सबका कंपैरिजन की इतना इसमें लिक्विड श्रिंकेज हो रहा है, इतना इसमें हो रहा है, तो वो उससे आएगा ही आएगा आपका क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद फिर ये फ्लैश लिबरेशन, डिफरेंशियल लिबरेशन, सेपरेटर टेस्ट, इसमें भी बहुत चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आए, जैसे 2020 में भी आया था इसमें से एक क्वेश्चन। तो थ्योरी के लिए आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फ्लूइड फ्लो से तो पक्का ही है कि 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे फ्लूइड फ्लो, और ये फ्लूइड फ्लो का आप अच्छे से करोगे तो इसमें आपको वेल टेस्टिंग है, ये मतलब रिलेटेड है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपकी। आप मतलब अगर अच्छे से समझते हो तो दोनों सब्जेक्ट्स में हेल्प होगी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया। अब की बार भी जैसे टिल्टेड का क्वेश्चन आया था, टिल्टेड रिजर्वोयर का मतलब दोनों में डिफरेंस निकालना था वेलोसिटी में, वो थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो गया था आखिरी में, बट बेसिक्स अगर क्लियर हो तो आप कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, कर सकते हो उसको। उसके बाद रिजर्वोयर में देखें तो मटेरियल बैलेंस तो सबसे मेन टॉपिक है, डिक्लाइन कर्व एनालिसिस,
मटेरियल बैलेंस, उससे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉपिक को स्किप कर सकते हो, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। हर टॉपिक में से अगर आप उठा के देखोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन बना ही हुआ है आपका, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। बट ये है कि जैसे मटेरियल बैलेंस हो गया, पोरोसिटी हो गया, पेस बिहेवियर हो गया, इनसे श्योरिटी है कि इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके। तो इन पे आप ज्यादा थोड़ा फोकस करो। बाकी फ्लैश लिबरेशन, डिफरेंशियल, ये जो टेस्ट है इन पे थोड़ा आप कम कर सकते हो कि ये सब बाकी मेन हो गया मेरा, उसके बाद मैं थोड़ा डीप में इनमें जाऊं। तो रिजर्वर का तो यही है बेसिकली मेरे हिसाब से। श्रीनाथ, आप आगे लॉगिंग और इन पे बात नहीं हुई है, तो थोड़ी लॉगिंग के कैसे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो बताएं थोड़ा। लॉगिंग में से अगर न्यूमेरिकल देखा जाए तो सोनिक लॉग और डेंसिटी में से न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर थियरी देखें तो एनएमआर लॉगिंग, न्यूट्रॉन लॉगिंग एंड एसपी लॉग और गामा रे, ये जो 4 लॉग हैं वो थोड़े थियरी बेस्ड ज़्यादा होते हैं। और जो सोनिक लॉगिंग एंड डेंसिटी लॉग, यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैसे कि मैंने वो बुक पता है, वो अगर हम वो पढ़ेंगे, जैसे कि पॉल ग्रोवर एंड एक और बुक है जो भी मेरी पर्सनल फेवरेट है, बैटमैन करके एक बुक है, जो काफ़ी कम बच्चों को पता होती है कि बैटमैन करके एक बुक होती है। तो इस बार का जो क्वेश्चन था, जो हालांकि वो चैलेंज हुआ था, लेकिन वो क्वेश्चन हम करके गए थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये डिस्पर्स क्ले वाला क्वेश्चन होता है कि हाँ, कि ये कुछ नया टॉपिक है तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉगिन के लिए भी वो जो बैटमैन के अंदर न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे से दिए, ट्विस्टेड न्यूमेरिकल है, तो वहाँ से कर सकते हैं। फिर एक टॉपिक है जो प्रोडक्शन का टॉपिक है, हीट एक्सचेंजर करके। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हीट एक्सचेंजर में से एक भी न्यूमेरिकल ना हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो हीट एक्सचेंजर में से 2 नंबर का न्यूमेरिकल हर बार फिक्स होता है। और अगर हम देखा जाए तो वो ज़्यादातर एप्टीट्यूड बेस्ड का क्वेश्चन होता है कि अगर हमें हीट एक्सचेंजर नहीं भी आता तो भी हम वो क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो और इसके साथ मैं एक और बात ऐड करूंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको ऐसा मत सोचो कि ये पेट्रोलियम का क्वेश्चन है। उसको ऐसे सोचो कि आपको अपनी अभी जिंदगी की कितनी भी पढ़ाई कर ली उसमें से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कि आपको 11th का फिजिक्स लगाओ, 12th का फिजिक्स लगाओ, मैथ्स लगाओ, कुछ भी लगाओ। जैसे कि अब हमें किसी भी मोटर का एचपी निकालना हो, जैसे कि पावर, तो पावर सबसे बेसिक क्या होता है कि फोर्स इंटू वेलोसिटी एफ इंटू वी होता है। तो अब कहीं से भी क्वेश्चन के अंदर देखो कि मेरे को फोर्स दिया है या फिर वेलोसिटी दी है, और अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको पावर ही मिलेगा। फिर यूनिट की बात है कि जैसे सबसे पहले बताया कि यूनिट मैचिंग आता है, तो आपको वेट के 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे आप यूनिट मैचिंग से ही। तो यूनिट मैचिंग बहुत बढ़िया रहता है। कैलकुलेटर एंड जो बुक्स के अंदर के बेसिक्स जो न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे कि अभी हर्ष ने बताया कि वो वेलोसिटी का डिफरेंस वाला क्वेश्चन था, तो अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो वेलोसिटी के डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो वो एक सबसे मस्त है कि बेसिक्स करो। फिर एक क्वेश्चन 2020 के अंदर का पेपर का सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ एस उसके अंदर लिक्विड का पूछा था, हमारे इस वक्त गैस का पूछा। तो वो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम का जो कोर्स देखा जाए वो बाकी सारी ब्रांच के कंपेयर में थोड़ा छोटा कोर्स है। कि अगर इलेक्ट्रिकल का कोर्स देखें हम तो काफ़ी लंबा है, मैकेनिकल का कोर्स काफ़ी लंबा है, तो वहाँ पे उनको वैरायटी बहुत मिलती है। लेकिन अगर पेट्रोलियम का कोर्स देखा जाए तो हमारा थोड़ा कंजर्वेटिव, मतलब छोटा कोर्स है, तो वहाँ से अब क्वेश्चन रिपीट होने भी स्टार्ट हो सकते हैं, कि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होंगे। सिर्फ वो लोग क्या करेंगे, छोटा मोटा वैल्यूज चेंज कर देंगे या फिर थोड़ी लैंग्वेज घुमा के देंगे, लेकिन जो उनका जो फंडामेंटल होगा, जो बेसिक कंसेप्ट होगा, वो तो सेम का सेम ही रहेगा। तो पिछले साल के जो जितने भी पेपर्स हैं तो वो तो करके ही जाना चाहिए। अगर आपको पिछले साल के पेपर में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको कुछ और मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले पिछले साल के पेपर इतने करो कि इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो आपको ना आता हो। तो वो भी एक बहुत, क्योंकि वो पेपर सारे गेट के, मतलब जो प्रोफेसर होते हैं आईआईटी के, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उन लोगों ने सेट किए होते हैं। तो अब वो क्वेश्चन अगर हम नहीं कर पाते अभी, तो आने वाले क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये उसकी कोई गारंटी नहीं। तो सबसे पहले जो पीछे हिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चन है उनको देखो, अगर आप वो सॉल्व करो, वो सॉल्व कर पाते तो आगे जाने की सोचो। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसा ही सोचो कि पेपर 65 क्वेश्चन का है ही नहीं, पेपर 50 क्वेश्चन का ही, हमें सबसे पहले 50 क्वेश्चन करना है, उसके बाद बाकी के 15 क्वेश्चन को देखना है। तो वो सब काम होता है राउंड 1 के अंदर, कि ये क्वेश्चन मेरे को देखना है या देखना नहीं है, इसको मैं देखूंगा भी नहीं ये क्वेश्चन चाहे पेपर खत्म हो जाए। तो ऐसे मतलब देखो, सबसे पहले 50 क्वेश्चन करने के ट्राई करो, अच्छे से 50 कर लोगे, अपना कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर आ जाए कि मैंने 50 क्वेश्चन कर दिए।
और अगर आप हार्ड क्वेश्चन पहले करने जाओगे तो ऐसा होगा कि यार मेरी 10 मिनट इसमें चले गई, तो आपको पीछे इजी क्वेश्चन होगी उसमें भी आप टाइम नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले जो हमें आता है उसको बटोर लो मार्क उसमें से, तो 60-70 मार्क तो आपके उसी में ही बन जाते हैं। उसके बाद जो ऊपर आते हैं वो आपके लीड के मार्क्स होते हैं, कि 70 के ऊपर इस बार जितने भी नंबर आए वो सारे लीड के मार्क्स थे। और अगर आप उसमें से अगर नेगेटिव करते तो आपकी लीड कम हो रही है, तो आपका रैंक भी पीछे जा रहा है। अगर इस बार मेरे नेगेटिव नहीं हुए तो मेरे लीड कम नहीं हुई तो मेरा नंबर भी आगे आ गया। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। ये मतलब अगर एकदम शॉर्ट में बताए तो डिसिप्लिन। राइट राइट राइट। बीच में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी टेस्ट सीरीज़ की बात चल रही थी। सो टेस्ट सीरीज़ में मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ एक बार स्टार्ट करके उसको सबमिट कर देते हैं उसी टाइम, कि सोचते हैं कि बाद में हम लोग आराम से करेंगे। ऐसा ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने टेस्ट सीरीज ली है पैसे लगा के, तो बेसिकली आप अपना पैसे डस्टबिन में डाल रहे हो, अगर आप ऐसा अप्रोच से टेस्ट सीरीज सोल्व करोगे। शर्माओ मत कि खराब रैंक आएगी, आने दो एग्जैक्टली। खराब रैंक। खुद का नाम क्योंकि डालो खुला छाती पे लेके नहीं नहीं, नाम मेरी चेंज कर देना। मेरी 70 रैंक आई है भाई। बिकॉज टेस्ट सीरीज का मतलब यही है कि आपको वो 3 घंटे में जो प्रेशर फील होने वाला है गेट के पेपर वाले दिन, वो उसको आपको अपनी आदत डालनी है, राइट? कि भाई मेरे को कैलकुलेटर भी यूज करना है इसी 3 घंटे में, ये इतने क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। तो जब तक आप ये चीजें प्रेशर फील नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज का। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज में सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने टेस्ट सीरीज फर्स्ट टाइम दिया था, एक पोरोसिटी का क्वेश्चन था। तो मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन में कि ये डेटा है, आपकी पोरोसिटी कितनी होगी। मैंने निकाल दिया आंसर और मैं निकाल के लिख के आ गया 30 की 30% होगा। बाद में पता लगा जब मैंने रिव्यू किया कि भाई उसने तो सिर्फ पोरोसिटी पूछा है, मतलब वो फ्रैक्शन में पूछ रहा है, उसने परसेंटेज नहीं पूछा है कि बट द परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी। हालांकि आपका आंसर करेक्ट है, बट वो क्वेश्चंस को रीड करना, उसका आंसर किस तरह से देना है, वो आपको तभी आएगा जब आप ये गलतियां करोगे, ये प्रेशर फील करोगे। तो ये बहुत ये इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है। कॉमन, सबसे ट्रेजिक एरर है। दिस इज वन ऑफ द एरर्स दैट messed up 4 to 5 questions मेरा गेट 2019 में। 90 में। तो दिस इज अ वेरी वेरी आई मीन अभी भी आपको याद रहेगा, देन ऑल्सो यू विल डू दिस थिंग एवरी नाउ एंड देन। so this is like आप अपने नोटपैड में you go to the gate exam hall, you write this, आज I will not mess up on fractions versus percentage. You have to make sure आप 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही आपने पूरा conceptually you have corrected the whole thing, but at the end you are mentioning saturation as 70% whereas that guy is asking you 0.7. so आपने किया है, then you deserve to be having that rank. So that's why I think श्रीनाथ का भी जैसे बहुत सारे गेट के जो स्कोर्स हैं, they suggest me that उनका conceptual problem has, conceptual understanding has been there since 2018-19, but these things he has maintained this discipline now. अभी भी उन्होंने पिछले 2-3 साल में भी ये गलतियां की होगी, I think these kind of mistakes. तो these kind of इवन mistakes 2022 में भी। हाँ, तो अभी भी किए देखो इन्होंने, अभी भी। सो दिस इज समथिंग, इफ यू कैन आधा नॉलेज रख के भी अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे ना, तो आप सॉर्टेड हो। मतलब इवन विथ हाफ नॉलेज, इफ यू कैन डू अ क्रिस्टल परफेक्ट काइंड ऑफ पेपर, देन यू आर डन, you will score good marks. So the holy truth is you do great mathematics, try to go at 30 out of, let's say, 27 or 28 out of 30 marks plus in mathematics section. In oil and gas section you get 30 to 40 marks or more in oil and gas. And that is very easy because 70 में से आपको अब हम लोग अलाउ कर रहे हैं 20-30 नंबर का छोड़ने का फिर भी आप लोग गेट टॉपर के जितना बराबर नंबर ला सकते हैं. So that's very very easy if you look at it this way. The only problem we do is आप एग्जाम प्रेशर में आके बहुत छोटी छोटी गलतियां, बहुत खराब टाइप की गलतियां कर देते हो. Knowledge सबके पास है. So I think that's it. I think now it's a good time to allow the audience to come up with something. I see something is mentioned by Ashutosh. Kindly discuss on aspects after scoring a rank in GATE. How exciting is a career in data science? I think this question is coming from the recent advancements of the GATE score. So I'll touch that point. How you feel after scoring a decent rank in GATE and having a great career in data science as well. So basically, everyone must know these days that I have a few examples with me as well. That it's the first priority is to get into a PSU by a GATE score, or to get a master's degree or something. But अभी recently trend ये भी हो रहा है कि other colleges like IIT Roorkee etc.
NITI also. Yeah, they are NITI. NITI also. They are considering your gate score, which is kind of lesser than the PSU qualifying scores. They are happy with the kind of, in the ranks of just missing that. So in the ranks of 30s and 40s and 50s, you can also get a master's opportunity in data science, for example, in IIT Roorkee. You can get an opportunity for a diploma or master's in NIT IE. So these days petroleum का gate rank has more opportunities for you. Ultimately सबको नौकरी करनी है, most of the people. If you don't have specific aims, specific targets, if you just focus on getting a good job at the end, then you can also go for these options. So if you guys request us and if you guys want to अभी तो बहुत लंबा सेशन हो चुका है, we can arrange people from that background जिनका जैसे श्रीनाथ भाई, if you know, there is this guy from PDPU, Ronak, so he had, I guess, 40 Yes, Ronak rank. Pandya. Ronak Pandya. तो उसका 41 something rank था in GATE, and now right now he's in his second year, I guess, first or second year, IIT Roorkee data science. So that's a very, very good branch to take. I mean, उस time oil prices भी they were very down, and I think it's a good option. Chirag Kataria, one of my batchmates, 2021, I guess he got All India rank 2. Second rank. So he is now in his second year in NIT IE, so doing his masters. So there are people with good gate ranks doing good things other than getting a PSU as well. So they are, because their aim is clear, they want to get a good position in the industry. So these things also can happen. Let's hear it from them in some other session after this. So for now, if anyone has any other questions related to the GATE paper, let's I want to add something that apart from that IIT Roorkee and NITI, even IISc Bangalore is accepting petroleum gate score for their admission, and even I have appeared for the interview of IISc Bangalore to get in PhD admission in computational data science and also in neuroscience. So it is also a nice option, and IISc Bangalore is also offering that MBA course, and you can think that if you are passing from IISc Bangalore, then it is equivalent to IIM Ahmedabad of management, because IISc Bangalore is a, let's say, top-notch institute. Top-notch Brilliant, institute of brilliant India. institute. Right? Yeah, Brilliant. cream of technology. Actually. Right. Yeah, so there is nothing like that. If you haven't scored a good gate rank, then your life is over. There is nothing like a good gate rank. There is nothing like a good And- gate rank. Your rank should serve the purpose that you want to achieve in life. Yeah. If your purpose is to get into a prestigious PSU, then accordingly score the rank. If your purpose is to secure a good corporate position, then some other rank can do for you as well. So there is nothing You like need to be clear what you want. After that, you you need can to pay be your clear. dues. You need to be aware of the family situation you are in right now. And As Harsh said that he was clear that he need only PSU, so he didn't even look it's on very, other yeah, things. it's very, Harsh is very lucky to have such a crystal clear goal. Most people don't have a goal at the position where Harsh is right now. So make sure you have a goal and get the rank that fits your purpose. Even if you don't get the rank that fits someone else's purpose, that's fine. आपका काम होना चाहिए, बात खत्म, आप चिल करो. Someone is asking what should be ranked for PSU again. That depends on how many seats they are offering in a certain year. 2016 में तो 40 समथिंग रैंक पे भी हुआ था, आई थिंक सिलेक्शन 40-50 रैंक पे भी हुआ था, बट थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग इन द बट 2020 में आई गेस 20 वाले रैंक का भी मुश्किल है. 20 भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, 15 वाले का भी मुश्किल है. हाँ, दिव्यांश सेठी सर का 25 रैंक था. आपको पता ही है, श्रीनाथ सर का तो पता ही है आपको स्टोरी. तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग आपको, बट आप पढ़ ही रहे हो तो यार व्हाई वरी अबाउट द रैंक. यू स्टडी सो मच दैट यू नेल ऑल इंडिया रैंक 1. Why worry about one? Be Why- मतलब get the how zero you rank. how you can know that what rank you are going to score? Next You have year to try do- to get the 0th rank. I mean, उससे भी 1 से भी अच्छा तैयारी करो. So do something like that. And then if you don't get it, आपको एक चीज तो clear है ना, your concepts are there. You are doing justice to a petroleum engineering studies. And then आप कुछ भी कर सकते हो. So I think that's there. One One more more question question by is- Raiwan. please give some एक tips हाँ, for second year Second students. year students, इसमें and clear your basics. Yeah, Harsh, you were saying. नहीं, हाँ, इसमें हर्ष एक और Do सेकंड ईयर maths स्टूडेंट्स regularly. सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक मतलब मेरी बेसिक टिप है, सजेशन है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है तो सबसे पहले तुम किसी प्राइवेट कंपनी में, ओएनजीसी में नहीं, किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी इंटर्नशिप के बारे में
मतलब सोचो, क्योंकि उससे तुम्हारे पेट्रोलियम के कॉन्सेप्ट्स अगर तुम अच्छे से इंटर्नशिप करते हो तो वो बनेंगे, तुम्हें पता लगेगा कि असली में ड्रिलिंग क्या होती है, असली में हम रिजर्वोयर जो पढ़ रहे हैं उसका क्या रोल है, मतलब क्या है वो, कैसे ड्रिलिंग होती है, क्या ड्रिल पाइप है, कैसे सब सेटअप होता है। तो उससे काफी हेल्प मिलेगी। तो अभी सबसे पहले तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप की ट्राई करनी चाहिए। तो ये एक सजेशन है। जैसे मैंने खुद थर्ड ईयर में था जब केन में इंटर्नशिप करी थी, तो उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करा था। ये वर्क और वेल सर्विसिंग ये सब तो मुझे मतलब मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी गेट के लिए। तो आप ये थोड़ा इस पे भी थिंक अपॉन कर सकते हो। राइट। एंड उसके बाद एक और चीज़ ये है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो, आपको गेट देना ही है, बिकॉज अगर आप पास आउट करोगे गेट देंगे देंगे, चाहे आप सीरियस होकर दो चाहे ना दो, वो अलग बात है। बट अगर आप सेकेंड ईयर में हो, आप अपने साइड बाय साइड सेकेंड ईयर में जो आपके टॉपिक्स चल रहे हैं उसको आप अपने गेट के सिलेबस से सिंक करके पढ़ सकते हो। राइट। आपके जो फर्स्ट ईयर में टॉपिक्स हो चुके हैं वो आप वापस रिवाइज कर सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हो, बिकॉज अगर आप फोर्थ ईयर के बाद ये सब चीज़ें करोगे आपके 4 सालों का काम इकट्ठा करना पड़ेगा। राइट। अभी आप करोगे तो आपके पास बहुत टाइम है, बहुत समय है। एंड एंड प्लस क्या होता है कि अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो ये आपको, जैसे बोला हर्ष ने कि इंटर्नशिप जरूरी है, इंटर्नशिप के लिए भी आपको इंटरव्यूज क्रैक करने पड़ेंगे। राइट। एंड इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। तो अगर आप वही जो चीज़ें आपकी हो चुकी हैं ऑलरेडी वो अच्छे से आप प्रिपेयर करते हो, नोट्स बना के रखते हो, तो वो गेट में भी हेल्प करेगी और प्राइवेट कंपनीज में इंटर्नशिप एज वेल एज जॉब के लिए भी हेल्प करेगी। तो अब इससे इससे ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे आना चाहते हो, फोर्थ ईयर के बाद अच्छी जगह पे जाना चाहते हो। हाँ, और जो थर्ड फोर्थ ईयर में है और ये सुन रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये सब मैंने किया नहीं है, तो वो भी टेंशन मत ले। ऐसा नहीं है कि करना जरूरी है, आगे भी रास्ते बहुत खुलते हैं। राइट। Any other doubts? Anyone? अच्छा, एक पूजिता ने सवाल पूछा है कि व्हाट इज द स्कोर, व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द गेट रैंक होल्डर्स लाइक व्हिच वी हैव विद श्रीनाथ, हाउ इज योर, हाउ मच इज योर मार्क्स? 82 out of 100 this time. 82. So AIR1 has got 82. Okay. नवदीप भाई आपके? 78.66। ठीक है। हर्ष भाई? 77.33। ठीक है, थैंक यू। और और जो कोई? रैंक 3 है उनके 78 है। 78, ओके, ठीक है। और कोई Could you किसी के please पास? tell gate score as well? गेट स्कोर 980 out of 1000. ओके, मेरा 932। 932, मेरा 913। 913, हाँ जी। ओके, ठीक है। ठीक है, और किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज। Or you can also connect with these guys. I have shared the LinkedIn ID for Srinath Jani, Navdeep Dhaka, and Harsh Arya. हर्ष का नहीं आया भाई, हाँ आ गया। Okay. Anyone? Any more doubts? Feel free to ask anything, and whatever and whenever you need us, I will be there for you. अच्छा, एक दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट बोल देनी चाहिए अभी क्योंकि सेशन चल रहा है। एक, ग्राफ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पेट्रोलियम के गेट में। ग्राफ्स को रीड करना अगर आपको आता है, उससे आपको इंसाइट्स डिराइव करने आते हैं, जो अगर कोई टेबल दिया है उससे आपको इंसाइट्स अगर डिराइव करने आते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करता है। मैंने टू बी ऑनेस्ट इस साल का पेपर देखा नहीं है 2022 का, बट पिछले सालों में ग्राफ से रिलेटेड एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि आपको एक सिंपल सा ग्राफ दिया है, उसमें आपको जैसे सपोज पॉइंट्स दे देंगे कि ये पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट आपको क्या शो करना चाहता है, या फिर इन जनरल ये किस चीज़ का ग्राफ है, क्या इंसाइट्स आप डिराइव कर सकते हो। तो वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्किल है ग्राफ रीड करना, या फिर टेबल से अगर टेबुलर डेटा को इंसाइट्स के रूप में उसको कन्वर्ट करना, उस पर भी थोड़ा फोकस आप करते हैं तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको ये चीज़। एंड अभी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं। तो जैसे कि आपका जो भी ग्रुप है कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे दिव्यांश ने बताया कि अभी जो हाल ही में आपके क्लासेस में टॉपिक चल रहे हैं, तो ट्राई करो कि आप अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस करो कि आज हमने मान लीजिए कि कैपिलरी प्रेशर पढ़ाया गया क्लास के अंदर, तो कैपिलरी प्रेशर एक्चुअली क्या होता है, उसका बेसिक्स क्या होता है, उससे किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं एज ऑफ नाउ, कि अपने अभी की नॉलेज के मुताबिक कितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और हम क्या कर पाएंगे उसको, और अगर इसके अंदर और डिफिकल्ट बनाना है या फिर कुछ छोटा सा ट्विस्ट भी लाना है तो कैसे ट्विस्ट आ सकते हैं। तो
ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि जैसे कि क्लास के अंदर हम बच्चे मिलके इसको पूरे क्लास के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि जिससे अपना तो सही हो लेकिन पूरे क्लास में जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो भी बच्चा सीख पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मतलब ये टेक्निकल नहीं है बट मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। एंड हर्ष ने भी जैसे एग्जांपल दिया था, वो बॉक्सिंग करते हैं साइड बाय साइड। तो मेरे हिसाब से कई बार एक हॉबी होना या फिर कोई एक ऐसी चीज़ साइड बाय साइड रखना जो कि आपके माइंड को थोड़ा शांत रखे, लाइक यू आर इन अ हैप्पी प्लेस, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आप अपनी माइंड मसल्स को ट्रेन कर रहे हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? तो वहाँ पे थोड़ा शांति होना बहुत ज़रूरी है। सो अपने आसपास का माहौल थोड़ा ऐसा थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करिए। जो आप जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे उसको अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मतलब खुश रहो बेसिकली यार। ये बहुत हेल्प इसमें करता है। नवदीप सर से मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है, काफी और लोगों का भी होगा कि ये गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे क्या दोस्तों वोस्तों को इग्नोर मारना शुरू कर देना चाहिए? मतलब उनका फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उनको कह दो मत आओ, तुम भाग जाओ यहाँ से, क्या मतलब इस पे क्या टिप्स दोगे आप एस्पिरेंट्स को? दोस्ती का क्या रोल है गेट के अंदर? हाँ। नहीं, दोस्त से रखना जरूरी है बहुत, दोस्त ये याद रहना। बिल्कुल। एक तो फाइनल चीज, फाइनल क्वेश्चन लेना पड़ेगा, उसके बाद लेट्स, बिकॉज बहुत लंबा सेशन हो चुका है, फाइनल क्वेश्चन एंड देन लेट्स एंड दिस। वी हैव अ क्वेश्चन दैट सर, आई एम अ डिप्लोमा बैकग्राउंड स्टूडेंट and I'm not that great level in mathematics, and a kind of person that has studied to pass marks in mids on NSEMs. Every one of us done that. So what are your suggestions for starter like me? How can we have start for gate preparation? So I would like you to know that everyone is like that in college. We are enjoying our lives, so hum log bhi we study to just pass the exams. That's not a problem, but there are great YouTube playlists. Just assume you don't know even high school mathematics. Be very true to yourself. YouTube is there with you. Khan Academy, for example, Khan Academy is there. There are great Gate Academy is there on YouTube. Gurpal Chawla sir. There are great playlists for mathematics. If you are targeting it right now, you have a lot of time. You can improve your mathematics. Very important. You can read NCRT again. If you are in third or fourth year, you can read NCRT and keep on revising your basic fundamental mathematics, even trigonometry and stuff. And keep your gate syllabus for mathematics along with you, and make sure till you know all these things, keep on revising. So YouTube, Khan Academy and Gurpal Chawla, NCRT, and then that which book was mathematics gate book. which book was that? Made easy. Made easy. Yeah. So these things can help you. So that's a one thing. And how to increase speed and accuracy, to answer my question. Any Just question? practice. And if you are giving test series, focus on not the correct questions, but your wrong questions every time, and focus on why they are wrong, and improve on those questions, and then give the test series again, then focus on errors again, then improve on them, then keep on repeating this cycle. Your accuracy will improve. Your main focus has to be on the problems that you are facing, not on the things that you are doing well. All right, so test reviews are very, very, very important. And also make sure all the 5 to 6 year gate papers, you appear and you solve them like holy bible or holy book, any holy book. So make sure you follow them blindly. I mean, those questions are your key to the concepts. So mindset for that 3 years, let's hear it from All India Rank 1, and let's conclude this on a high note. If you are Srinath, if you have an exam tomorrow, what will be your mindset before we end this session? माइंडसेट तो ऐसा रखना है कि मुझे सब आएगा, और अगर मुझे नहीं आता तो वो मेरे जैसे काफी बच्चों को नहीं आता होगा, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो बाकी सबको भी डिफिकल्ट लगेगा। तो ये एक मतलब Perfect. दिमाग में ठान लेना है कि अपने को अगर हार्ड लगता है तो बाकी सबको भी हार्ड ही लगेगा। You are the king and the You are queen. the king, yeah. यस। All right, Pakka. Let's get good gate ranks next year. Everyone who has attended this session, कुछ सीखा है तो forward this to your friends as well. We'll be uploading this session on YouTube as well. So watch it again, learn things, and you have the LinkedIn contacts for everyone. Get in touch with everyone. And if you need another session for another things related to gate, please let us know, and we will arrange some more sessions with the people that you met today. So have a good evening, everyone. Best of luck.
best of luck. We'll hoping to see some more faces next year from this session only Definitely. Right. that are in participant. Signing off. Okay. Thank Okay. you, Srinath, and Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank Thank you you, so Harsh. much. Thank you, Great Srinath. session. Thank Bye. you for your Bye time. bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night.